Good morning, everyone. I welcome you all to our workshop on reference management through Mendeley. The International Research Alliance for Sustainable Development is the main organizer of this workshop in collaboration with United Frontiers Publisher, Malaysia. International Research Alliance for Sustainable Development is an international professional body for research trainings, conferences and workshops, publications, and research consultancy. United Frontiers Publisher is an international online publishing house and a place for learning and research. They publish research and organize international conferences, trainings, and workshops. We are delighted to have you all here, and we hope you find this workshop both informative and engaging. Before we will begin, I would like to take a moment to introduce our trainer, Dr. Muhammad Atif Nawaz. Dr. Muhammad Atif Nawaz has been serving the Department of Economics at the Islamic University of Bahawalpur as Associate Professor since 2008. Dr. Atif has earned his PhD from University Utara, Malaysia. He has been an active academic and researcher. His research interests include environmental economics, tourism economics, and governance dynamics. He has actively published in top-tier journals such as Journal of Environmental Management, Environment Development and Sustainability, Resource Policy, and Natural Resources Forum. His cumulative impact factor is 140, and the citation count on Google Scholar is near 5,000 with an H index of 31. He has an extensive experience of conducting trainings and workshops in Pakistan and Malaysia. He has trained academic researchers and practitioners from over 30 countries. So we are fortunate to have such knowledgeable expert with us today. Our agenda for the next 2 hours includes an introduction to Mendeley, a detailed walkthrough of its features and how to practice this software. We encourage you to participate actively to get the most out of this session. If you have any questions during the presentation, type them in the chat, or please feel free to ask them at the end of this workshop in the questions and answers session. So let's get started. Over to Dr. Muhammad Atif Nawaz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I welcome you all to this workshop titled as Introduction to Mendeley. And you already have my brief introduction. And let's get started with the workshop. We have all the participants from Pakistan, or at least we have from some other countries, but they are also Pakistani. So we will go like bilingual. And we will the objective of this workshop will be to enhance learning experience. So I hope everyone can see my slides because I'm sharing the screen. Well, let's start with the introduction to the Mendeley. Mendeley is a free suite of reference management applications that can help busy researchers store and manage references, streamline their citation workflow, and easily discover and access the new research. This updated suite of Mendeley solutions is free. Each can be used independently from each other and are available across a wide range of systems. We can use it on the computer, on the desktop computer, laptops, iPads, tablets, mobile phones, and we have our library on the cloud. Let me elaborate what we will cover in today's workshop. It will consist of the 4 functions. Number 1, how we organize our references, our citations, and all the literature in our library. This part will be named as organize.
It will introduce us how we import, collect, and organize research and references using this Mendeley. And the second is read and annotate. This part covers how to use the PDF reader and notebook features in the Mendeley. Third feature is cite. We will show how the cite function works and how we cite the references while writing in our Word, Microsoft Word, and how we use the Mendeley cite function and create the bibliographies. And the last and fourth function will be the collaborate. This function demonstrates the features of sharing resources with the team using Mendeley reference manager, and we can create groups, we can join public groups, and we can create private groups here, so we can work in the teams to work in smaller teams in a group of researchers. So Mendeley's reference management suite. Let's get started. So before starting, I assume that everybody is new to this software, and if someone is already using it, so I just assume that nobody has ever used it, and nobody has this software on their computers or laptops or any device that you're using. So let's get started with the installation process. We can create our account on the Mendeley web. To begin with, we suggest you to create an account using the web address www.mendeley.com. All of you can write in your Chrome or or any other browser that you're using. Just write mendeley.com. When we write the mendeley.com, this kind of interface appears. This is a website that will appear on your screens, and we have two options here. Number one, sign in, and number two, create account. I hope everybody can see my screen, and you can. I hope everybody has opened the website mendeley.com. Great. So once you have created your account, we will download the applications, and we will be working with on which we will be working today. So here is another button of the download. We can download the software. The biggest benefit of using the Mendeley reference management software as compared to its competitors like EndNote, this reference is open source, and this reference management software is open source and is freely available. And we have our library on the cloud, and we can access it anywhere on any kind of device. Just download it, and once the download has completed, you can just install it simply as we install any other software. You can download Mendeley Reference Management desktop application and simply access it on the web from wherever you are working from. And both versions have the same appearance and functionality. Your library appears on the website in the same way as it appears on your Mendeley desktop. And I hope everybody has downloaded the desktop app. And when the download is complete, the app installer for your operating system for your computer will launch, and you can launch the installer from your download folder. And if you're using the web version today, simply sign in to your Mendeley account, then select library in the upper right corner next to your name. So we have some messages here. Do we have to create account before downloading? Yes, we have to create account on the Mendeley. Because Mendeley का जो सबसे अच्छा फीचर है वो ये है कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है,
और इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हम अपनी जो लाइब्रेरी है वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे क्लाउड पर लाइब्रेरी जो पड़ी होती है वही हमारे पास मेंडले जो हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसमें पड़ी होती है। अगर हमने अपने लैपटॉप पर, अपने आईपैड पे या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने अपना जो मेंडले डेस्कटॉप बनाया हुआ है, तो उसके अंदर जो भी लाइब्रेरी है और जो भी जिस तरह से वो डेली बेसिस पे हम उसको अपडेट करते हैं, एक भी रेफरेंस उसके अंदर ऐड या रिमूव करते हैं, तो लाइकवाइज इट विल बी अपडेटेड ऑन आवर मेंडले वेब प्रोवाइडेड दैट वी हैव द इंटरनेट फैसिलिटी। तो इसलिए इस पे एक अकाउंट बनाना जरूरी है, और अकाउंट सिंपली बन जाता है, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस पे अकाउंट बन जाता है, जैसे हम किसी भी और चीज का अकाउंट बनाते हैं इंटरनेट पर। This is how we download. From here, from this button we can download the reference management software, and this is available across the different operating systems. Mainly, Reference Manager is available for the Macintosh, Mac systems, and for the Linux as well. And for the window, or since we all are using Windows, most of us are using Windows, so it is available for window. And just keep in mind that Windows 7 and above, it is mentioned on the website. We will add the Mendeley site button in our Microsoft Word later on, and for the website also we will do it later on. Or if you want to do it right now, uh, if everybody has already opened the Mendeley, if everybody has downloaded this app, so let me help you to explain it. I have the Mendeley software here. हम जब मेंडली ओपन करेंगे, तो मेंडली ओपन करते हुए हमारी जो मेंडली रेफरेंस मैनेजर जो डेस्कटॉप हमारी ऐप है, उसके जो इंटरफेस है वो इस तरह से होगा। इसमें टूल्स में जा करके और मेंडले वेब इंपोर्टर को एक हमने इंस्टॉल करना है, और एक मेंडले साइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को करना है। सिंस आई एम ऑलरेडी यूजिंग इट, सो मेरे पास ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी हुई हुई हैं। तो इंस्टॉल मेंडले वेब इंपोर्टर इस पर क्लिक कीजिएगा, और ये आपसे एक हॉटमेल का अकाउंट रिक्वायर करेगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट, सॉरी, ये जो मेंडले की वेब इंपोर्टर है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें अपने वेब पर, जो हमारा क्रोम हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम अपना वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। और मेंडले साइट एक एक्सटेंशन है, ये हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंस्टॉल करेंगे। जी, WhatsApp group to facilitate downloading. Okay, if you have any problem in downloading, just let me know. I will help you to download it. No problem. We can take 5 minutes for this. There is no problem. We have shared a link here. Just click on the link and we can download it from the website. I request all the participants to click on this website, click on this link that we have sent in the chat box, and it will take you to the Mendeley website and to the download manager. You can download the Mendeley Reference Manager, which is your desktop app. Please let me know if there is any problem. You can send a message in the chat box. Or still, if the problem persists, just let us know. We will unmute you. No problem.
अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवाज, कैन यू हेयर मी? जी सलमान साहब, आप पूछिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ये सर, इंस्टॉलेशन तो हो गई। उसके बाद ये जो आपने इंटरफेस खोला हुआ है, मेरे पास वो नहीं आ रहा। इंस्टॉलेशन के बाद वो कह रहा है कि वेलकम टू योर मेंडली। ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप चेक कर सकते हैं तो काइंडली देख जी, ले। मैंने उसमें पिक्चर शेयर की है जो मेरे स्क्रीन पे आ रही है। मैं इसको देखता हूँ भैया। तो इज इट ओके? इज इट नाउ वर्केबल और नॉट? ये भी जरा काइंडली देख के गाइड कर दें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने जो पिक्चर शेयर की है ये इस टाइम मैंडले वेब की है। और मैंडले वेब पे आपका अकाउंट बन गया है। वो राइट टॉप कॉर्नर में मोहम्मद सलमान लिखा हुआ है, उसके साथ लाइब्रेरी पे क्लिक करें आप। ये अभी सर्च पे है। ये सर्च के बटन पे हम न्यू लिटरेचर सर्च कर सकते हैं, जैसे हम गूगल स्कॉलर में करते हैं या साइंस डायरेक्ट पे करते होते हैं। जी। उसके सर्च के साथ एक और बटन है लाइब्रेरी का, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको आपकी लाइब्रेरी नजर आएगी। एंड सिंस यू आर न्यू टू द मैंडले, अभी लाइब्रेरी में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नजर नहीं आएगा। तो जो जो लाइब्रेरी की इंटरफेस होगी, सेम इंटरफेस आपकी जब आप अपने डेस्कटॉप मैंडले पे ओपन करेंगे, जब उसको लॉगिन करके ओपन करेंगे, तो सेम लाइब्रेरी जो आपकी वेबसाइट पे नजर आ रही होगी, वही की वही लाइब्रेरी आपकी मैंडले डेस्कटॉप पे नजर आ रही होगी। सर एक सेकंड, मैंने जो है वो पिक्चर वो भी शेयर की है। उसमें मैंने डाउनलोड के बाद उसको ओपन किया है। वेलकम टू योर मेंडले लाइब्रेरी लिखा हुआ आ रहा है। ऐड न्यू रेफरेंसेस रिसेंटली एडेड, इस तरह से। ये जी भी वो, आपको डिलीवर नहीं हुई पिक्चर। जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ। चलिए उसको हम वो ठीक है, जब उसमें वेलकम लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब है ठीक है वो। तो आगे हम चलते हैं इंशाल्लाह वर्कशॉप में। आगे इंशाल्लाह जो भी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी आंसर होते जाएंगे। अगर दरमियान में भी कुछ आता है तो नो प्रॉब्लम, आप इसमें चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई इशू रहेगा तो हम उस अनम्यूट भी कर देंगे। श्योर सर, श्योर। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और अ, ये इस तरह से जी मैंने अपना मैंडले ओपन किया हुआ है। और ये मैंडले डेस्कटॉप है। मेरे पास मेंटली डेस्कटॉप में बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने अपनी लाइब्रेरी में ऐड किए हुए हैं। तो दोबारा हम अपनी इस प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। और आई होप सब लोगों ने अभी अपना मेंटली डेस्कटॉप डाउनलोड भी कर लिया होगा, और अपनी जो मेंटली वेबसाइट है उस पर अपना अकाउंट भी बना लिया होगा, और डाउनलोड करके वहाँ पे लॉगिन भी कर लिया होगा। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मेंडले के वेब इंपोर्टर के एक्सटेंशन स्टोर से मेंडले साइट, और उसको जो सेकंड इसकी एक्सटेंशन एक्सटेंशन थी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी मेंडले ऐप में, टूल्स में जाके इंस्टॉल मेंडले वेब इंपोर्टर। ये वेब इंपोर्टर आपको हेल्प करेगा कि वेबसाइट से किस तरह से आपने रेफरेंसेस को डाउनलोड करना है और अपनी लाइब्रेरी में लेके आना है। एंड जो सेकंड है इंस्टॉल मेंडले साइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो इंस्टॉलेशन है, ये जो टूल है, ये आपको हेल्प करेगा कि आप अपने टेक्स्ट को लिखते हुए, अगर आप अपने थीसिस लिख रहे हैं या आप अपना कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ड्यूरिंग राइटिंग उस दौरान आपको कैसे आर्टिकल्स को साइट करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। और इंस्टॉल मेंडले वेब इंपोर्टर ये वेबसाइट से आपकी रेफरेंसेस को डाउनलोड करने का है। ओके ग्रेट। चलिए हम प्रेजेंटेशन पे वापस चलते हैं। और हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं कि अब से हमने काम करना किस तरह शुरू करना है। तो जो पहला फंक्शन है मेंडले का, वो है बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर रेफरेंस लाइब्रेरी। बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर रेफरेंस लाइब्रेरी से मुराद ये है कि हम किस तरह से वेबसाइट से अपने रेफरेंसेस डाउनलोड कर सकते हैं, रेलिवेंट रेफरेंसेस वहाँ से सर्च करके हम किस तरह से अपनी लाइब्रेरी में लेके आ सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो
दिस इज अ मेंडले इंटरफेस। ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। और अगर मैं अपना मेंडले डेस्कटॉप आपसे शेयर करूँ तो ये मेरा मेंडले डेस्कटॉप है। इसको हम, ये मेरा मेंडले डेस्कटॉप है, ये आप सबको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। तो इसी तरह का डेस्कटॉप ये आप सबके पास अपेयर हो रहा होगा, जिसमें हमारे यहाँ पर तमाम कमांड्स हैं, जहाँ पे सारा कंट्रोल है। और ये सामने हमें लाइब्रेरी की इंटरफेस है जिसमें डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आ रही है। हम लाइब्रेरी को बिल्ड किस तरह से करते हैं, लेट्स कम टू दिस पॉइंट। इसमें तीन पैनल्स हमें नजर आ रहे हैं रेफरेंस मैनेजर लाइब्रेरी के अंदर। जो तीन पैनल्स हैं उसमें जो लेफ्ट मोस्ट पैनल है वो, उसमें हमारी कमांड्स हैं। और दरमियान वाले पैनल में जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है वो हमारी पूरी लाइब्रेरी है। और जो राइट साइड पे हमें नजर आ रहा है वो हमारे किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल की, किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की डिटेल्स हैं। हम जिस भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे नजर आएंगी। ये हमारे सामने जो सेंटर में हमारा इंटरफेस है, ये हमारी लाइब्रेरी है। सॉरी, दोबारा हम उस स्लाइड पे चलते हैं। और हम नाइटली डेस्कटॉप पे जाके मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको, कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेंडले इंटरफेस। इसमें जो हमारे लेफ्ट साइड पे जितनी भी कमांड्स हैं, इन कमांड्स में फर्स्ट वन इज ऑल रेफरेंसेस। हमने जितने भी रेफरेंसेस अपनी लाइब्रेरी में ऐड किए हुए हैं, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो वो तमाम रेफरेंसेस हमें सामने नजर आएंगे। और ये जो सामने इंटरफेस है, इस पे हमारे सारे रेफरेंसेस अपेयर हो रहे हैं। रिसेंटली एडिड में अगर चले जाएंगे तो रिसेंटली एडिड, ये मैंने कुछ रेफरेंसेस कल ऐड किए थे, कल 20th को ऐड किए थे, आज 22 है। तो रिसेंटली एडिड में ये आ रहे हैं नजर। अगर मैं अभी कोई ऐड करूंगा तो फिर वो यहाँ पे मुझे अपेयर होना शुरू हो जाएगा। रिसेंटली रेड में जो मैंने रीड कर ली हैं रिसेंटली, वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। और फेवरेट्स, अगर मैं किसी को फेवरेट पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे नजर आएगा। फेवरेट से किस तरह पता चलता है, ये जो स्टार है, अगर मैं किसी पे स्टार पे क्लिक कर दूंगा तो वो मेरे फेवरेट में अपेयर होगा। और अगर मैं फेवरेट से रिमूव करना चाहता हूँ, देन आई विल क्लिक ऑन द स्टार अगेन, तो वो येलो नहीं रहेगा, तो वो मेरे फेवरेट लिस्ट से निकल जाएगा। और ये जो ग्रीन आपको ये नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी ये रेफरेंस रीड नहीं हुआ हुआ। जब मैं इसको क्लिक कर लूंगा, इस पे रीड पे क्लिक कर दूंगा, तो फिर ये रीड हो जाएगा और इसका ग्रीन साइन जो है वो खत्म हो जाएगा जब मैं इसको रीड कर लूंगा। तो ये इसका पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, पीडीएफ अब लोड हो गया। और मैं इसको जब रीड कर लूंगा तो रीड करने के बाद इसके साथ से वो ग्रीन साइन खत्म हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, अगर आप अलाउ करें तो। जी प्लीज प्लीज। सर ये तो आपने मेंडले ओपन किया हुआ है ना, अब इसके अंदर तो आपके पास लाइब्रेरी में ऑलरेडी जर्नल्स मौजूद हैं। अब हाँ फर्स्ट जी, हम जब सर्च करेंगे तो हम तो गूगल स्कॉलर पे सर्च करेंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको एक इंटरफेस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है हमारे पास। उसके क्योंकि बाद मैं आपको मैंने बताऊं। मैंने जो आपने टूल्स वाला टैब था, टूल्स वाले टैब पे मैंने जब उसको इंपोर्ट किया ना उसमें वेब पे, तो उसने उसमें एक शॉर्टकट दे दिया। वो प्रोबेबली एज पे जाके जो मेरा एज वाला है उस पे वो उसकी शॉर्ट की बना देगा, लिंक बना देगा। जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो वेब इंपोर्टर ये किस तरह से होता है। ये हम जब अपनी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा होगा कि ये यहाँ पे एक मैंडले का एक एक्सटेंशन यहाँ पे आ चुकी है, मैंडले वेब इंपोर्टर के नाम से। जब भी मैं अपना गूगल स्कॉलर ओपन करता हूँ तो गूगल स्कॉलर में जाके, स्कॉलर गूगल पे जाके, तो अगर मैंने अब यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई पेपर निकाला, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस से रिलेटेड कोई निकालना है पेपर, तो ये यहाँ पे देखिए, अब मैं मेंडले पे जब क्लिक करूंगा, साइनिंग इन टू मेंडले वेब इंपोर्टर। अब ये देखिए यहाँ पे जितने भी मेरे पास रेफरेंसेस आ रहे हैं वो मेंडले में यहाँ पे मेरे पास अपेयर हो जाएंगे मेंडले की एक्सटेंशन के साथ। ये सर जरा रिपीट एक दफा कर देंगे काइंडली। जी मैं करता हूँ, ये वैसे प्रेजेंटेशन का पार्ट ही है, आगे चल के भी आएगा ये।
फॉर द टाइमिंग आप ये देखेंगे जो भी मैंने वेब इंपोर्टर यहाँ पे अपना इंस्टॉल किया, तो वो वेब इंपोर्टर मेरी एक्सटेंशंस के साथ, यहाँ प्रोफाइल के साथ ये डाउनलोड का बटन है, उसके साथ ये जो एक्सटेंशंस यहाँ नजर आ रही है वहाँ पे वो एक्सटेंशन में अपेयर हो जाएगा। अगर आपका अपेयर नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जो एक्सटेंशन यहाँ पे नजर आ रही है ये पिन का बटन है, यहाँ पे पिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ उसके साथ एक्सटेंशन के साथ ही अपेयर हो जाएगा बटन। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सर आपको? सलमान जी साहब सर, मेरी स्क्रीन स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शो हो रही है, लेकिन अब चूंकि मेरे पास एज में मैंने इसको ओके तो कर दिया है। अब ठीक मैं है। जब एज ओपन करता हूँ ना तो मुझे वो ये लिंक कहाँ पे एज में नहीं दे रहा लिंक। एक मिनट। चलें चलें इस चीज को हम अगर फॉर द टाइम बिंग अगर आपके पास क्रोम है तो फिलहाल आप उसको क्रोम में कर लें। तो एज एज चूंकि मैं यूज नहीं करता हूं तो मैं इस पे हम प्रेजेंटेशन के बाद उसको हम पे देख लेंगे कि एज में इसकी क्रोम पे भी एक्सटेंशन नहीं दे किस तरह रहा से सर, अप्लाई है। क्रोम पे भी एक्सटेंशन नहीं दे रहा। ये एक मिनट, एक्सटेंशंस में नहीं आ रहा क्रोम में। एक्सटेंशन में नहीं आ रहा है तो। क्योंकि उसने पूछ जब डाउनलोड कर रहा था उसने पूछा ही एज के लिए था। अच्छा। जब मैंने डाउनलोड किया तो उसने ये क्रोम एक्सटेंशन का नहीं दिया। ठीक है। इट डायरेक्टली आस्क्ड मी टू वेदर यू वांट टू पिन इट टू योर एज और नॉट। तो आपने एज को मेरे ख्याल है अपने प्राइमरी ब्राउजर के तौर पे सिलेक्ट किया हुआ, डिफॉल्ट ब्राउजर के तौर पे सिलेक्ट किया हुआ है, शायद इस वजह से इस तरह से है। मेंडले आ गया सर आ उसमें। गया, चलें। ये चलें गुड। तो हम इस एज तरह में। से हम इस तरह से करते हैं, हम अपना नेक्स्ट इस पे चलते हैं। और ओके। अगर कुछ इश्यूज इस तरह के हुए फर्दर तो हम उसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। राइट सर। चलें जी। तो वेब इंपोर्टर करने के साथ साथ जो मेंडले साइट है जो वर्ड के लिए प्लगइन है, और जो टूल है वो आई होप सबने वो उसको इंस्टॉल कर लिया होगा। तो मैं आपको मेंडले की डेस्कटॉप पे अपनी लाइब्रेरी दिखा रहा था कि लाइब्रेरी किस तरह से होती है। तो ये जो लेफ्ट साइड में जितने बटन्स हैं, ये इनका मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। ऑल रेफरेंसेस, रिसेंटली एडिट रेफरेंसेस, रिसेंटली रेड, फेवरेट्स, माय पब्लिकेशन, अगर को आपकी अपनी पब्लिकेशन इसके अंदर है जिस अकाउंट से आप लॉग इन हुए हुए हैं, और वही डिटेल्स अगर आप किसी पब्लिकेशन में या जिसको आप असाइन करते हैं माय पब्लिकेशन में डालने के लिए, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डुप्लीकेट्स भी आ सकते हैं, अनसॉर्टेड जिसको अभी हमने किसी कैटेगरी में नहीं डाला हुआ। डुप्लीकेट्स अगर मैंने कोई एक रेफरेंस को 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा कर लिया है तो डुप्लीकेट्स भी यहाँ पे हमें नजर आ जाएंगे। और अगर हम कुछ जिन रेफरेंसेस को हम डिलीट कर देंगे तो वो हमारे ट्रैश में चले जाएंगे। ये कलेक्शंस और ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बाद में आगे चल के बताता हूँ कि कलेक्शंस क्या हैं और ग्रुप्स क्या हैं। और सेंट्रल जो ये इंटरफेस है, ये मेरे जितने भी मैं रेफरेंसेस अपने ऐड करता जाऊंगा ये मेरी इंटरफेस में यहाँ पे मुझे अपेयर होते चले जाएंगे। और लेट से मैं एक पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट पे, तो जिस भी रेफरेंस में मैं क्लिक करूंगा उसकी डिटेल्स राइट साइड पे एक पैनल में एक स्मॉल विंडो सी ओपन होगी, स्मॉल पैनल पॉपअप होगा। उसमें हमें इसकी इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी। इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स हैं, कि उसका टाइटल क्या था, उससे जर्नल कौन सा है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, पेज नंबर, तमाम चीज़ें आ जाएंगी। और अगर उसको हमने रीड करना है तो उसको रीड करने के लिए उस पर रीड का बटन भी अवेलेबल है। और गेट पीडीएफ, अगर उसके साथ पीडीएफ अटैच नहीं है तो गेट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो उसका पीडीएफ भी वो डाउनलोड कर देगा इफ पॉसिबल, अगर वो वहाँ वेबसाइट पे अवेलेबल हुआ तो। और इसके अंदर डिफरेंट नीचे और टैब्स भी हैं जो इसकी डॉक्यूमेंट की फर्दर डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो दी गई हैं। अगर कुछ नहीं है तो वो आप खुद भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वर्ड की इंस्टॉलेशन सर काफी लंबी है। वो पहले उसने वही डिटेल पूछ रहा है अकाउंट्स की, फिर उसके बाद पूछ रहा है जी फोन जी सर। नंबर, पूछ रहा है जी जॉब टाइटल, पूछ रहा है कंपनी, ये सारी चीजें डिटेल देनी पड़ेंगी। जी जी सर, बस वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है। तो
चलें, अगर आप लोगों ने वो कर लिया तो हम आगे चलें इसमें। लेकिन सर ये तो माइक्रोसॉफ्ट 365 पे ले गया, वो वर्ड के साथ तो नहीं इंस्टॉल हो रहा। नहीं 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 सर, नहीं उस पर नहीं। आपको कोई भी वर्ड है, आपके पास 13 का भी है, 16, 15 है, 19 है, 365 है, वो किसी पर भी इंस्टॉलेशन कर देता है। ठीक है सर। और सर ये वर्ड पे हम चेक कैसे करेंगे कि ये हो गया या नहीं? मैं आपको वर्ड ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारे वर्ड पे किस तरह से अपेयर होगा। सॉरी सर, जरा क्वेश्चन ज्यादा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वर्कशॉप्स डिफिकल्ट का किया पर्पज यही क्वेश्चन। होता है कि हम लर्निंग करें। तो ये हमारे पास ये सामने वर्ड ओपन है। मुझे नहीं अब नजर आ रहा सर आपकी स्क्रीन पे। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही? आपकी स्क्रीन पे वही मेंडले वाली आ रही है, वर्ड की नहीं आ रही सर मेरे को। आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है सर, मंडले की स्क्रीन शो। अच्छा, मैंडली ही आ रहा है। मैं एक मिनट उसको दोबारा अनशेयर करके दोबारा से शेयर करता हूँ। जी, अब मेरी स्क्रीन अपेयर हो रही है सबको? यस सर, अब ग्रेट। अच्छा, तो इसमें अब हमारे पास जो मेंडले है, मेंडले हमें यहाँ पर रेफरेंसेस में जाएंगे, तो यहाँ पे मेंडले साइट का बटन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो आप लोग अपने अपने वर्ड में जाके देख लीजिए कि मेंडले साइट का बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू है ऊपर, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, उसके साथ रेफरेंस है। और रेफरेंस पे जब क्लिक करेंगे तो रेफरेंस में ही हर जो भी हम रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसकी जो जैसे हैंड नोट का साइट वैल्यू राइट होता है, और इस तरह मेंडले साइट का जो बटन है, ये सारे इसी इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपेयर होते हैं। आ गया सर, आ गया। ओके, जी, थैंक यू ग्रेट। सर, ग्रेटफुल। ग्रेट। तो हम दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस जाते हैं। तो जो मेंडले लाइब्रेरी है, इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बेनिफिट बताया कि एक ओपन सॉफ्टवेयर है ये, और ओपन सोर्स है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो हमारी लाइब्रेरी बनेगी हमारे पास क्लाउड पे एक्सेसिबल होगी। अनलाइक अदर सॉफ्टवेयर, जैसे अगर हम एंड्रॉइड की बात करें, चूंकि मैं एंड्रॉइड भी साथ पैरेलल यूज़ करता हूँ और मेंडले भी यूज़ करता हूँ, तो एंड्रॉइड चूंकि वो उसका हमें अगर पेड वर्जन लें, यूजुअली पाकिस्तान में हम जिस तरह प्रैक्टिस है कि हम पेड वर्जन्स नहीं यूज़ करते हैं, हम क्रैक्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फिर वेब पे हमारी लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं होती। तो इन केस ऑफ एनी डैमेज ऑफ द डिवाइस जो हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, अगर वो उसकी कोई हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ गया है, या वो चोरी हो गया है, या कहीं ना कहीं अगर हमारी लाइब्रेरी हमसे गुम हो गई है, तो वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी, अगर हम पीएचडी का थीसिस कर रहे हैं, तो अ, वो सारी की सारी हमें फिर दोबारा एफर्ट करनी पड़ती है, वो वेस्ट हो जाती है। लेकिन मेंडले पर ओपन सोर्स होने की वजह से इसका बेनिफिट ये है कि हम इसको मल्टीपल अपनी डिवाइसेस पे पैरेलल यूज कर सकते हैं, और अगर तमाम डिवाइसेस भी अगर हमारे पास ना रहें, तो भी हमारे क्लाउड पे हमारी लाइब्रेरी रहेगी। जब हम लॉग इन करेंगे अपनी डिटेल्स के साथ, तो वो लाइब्रेरी हमारे पास एज इट इज़ अवेलेबल होगी, जहाँ जैसे पहले थी। उसके अंदर जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितनी टैगिंग की होगी, जितनी टीम्स हमने बनाई हुई होंगी, जो ग्रुप्स बनाए हुए होंगे, जितने रेफरेंसेस पड़े होंगे, तमाम चीज़ें एज इट इज़ अवेलेबल होंगी। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो कि एज कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर्स, जो हमें एक बहुत बेनिफिशियल इसका फीचर लगता है। तो इसके साथ एक इसका सिंक्रोनाइज का बटन है। तो ये ऑटो सिंक्रोनाइज भी होता रहता है। जब हम इसको मेंडले पे जाते हैं तो यहाँ देखेंगे हमारे पास यहाँ पे सिंक्रोनाइज का बटन, ये लेफ्ट बॉटम में हमें नजर आ रहा है, हमारी जो प्रोफाइल है, और उससे ऊपर एक सिंक्रोनाइज का बटन नजर आ रहा है। ये लास्ट सिंक्रोनाइज कब हुआ? जब 6 मिनट्स अगो हुआ। अगर मैं अभी इसके अंदर कोई रेफरेंस ऐड करूंगा तो ये इमीडिएटली सिंक्रोनाइज कर लेगा। सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि मेरी वेब लाइब्रेरी पर या मैंने मेंडले डेस्कटॉप पर जो चीज़ ऐड की है, वो सिंक्रोनाइज होके मेरे क्लाउड पे भी चली गई है।
अगर मैंने अपने मेंडले डेस्कटॉप पे एक चीज़ ऐड की है या फिर मैंने अपने मेंडले वेब की लाइब्रेरी में कुछ चीज़ ऐड की है, तो ये दूसरी तरफ दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी पैरेलल सिंक्रोनाइज हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो आप इसमें बटन पर क्लिक करके सिंक्रोनाइज कर सकते हैं इमीडिएटली। रेफरेंस हम ऐड कैसे करते हैं? हाँ जी, अब यहाँ पे हम आते हैं कि हमारे पास, चूंकि आप सबके पास लाइब्रेरी बिल्कुल ब्लैंक होगी, तो इसके अंदर रेफरेंस ऐड करने का तरीकाकार क्या है? एट टाइम्स हमारा ये होता है कि हमने बहुत सारे आर्टिकल्स डाउनलोड किए होते हैं गूगल स्कॉलर से या साइंस डायरेक्ट से या बाकी जो हमारे पास जो डाउनलोडिंग के लिए हम जो भी वो यूज़ करते हैं, जैसे साइंस डायरेक्ट है, जो डेटाबेसेस हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ से हम डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में सेव रखते हैं लिटरेचर को। तो हम इसको डाउनलोड किस तरह अपनी लाइब्रेरी में कैसे ऐड कर सकते हैं? तो हम अपने मेंडले डेस्कटॉप पे आते हैं। मेंडले डेस्कटॉप में आके ऐड न्यू का बटन है, ये लेफ्ट पैनल में हमें नजर आ रहा होगा। ऐड न्यू का बटन, ब्लू कलर का बटन अपीयर हो रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर से इंपोर्ट करना चाहेंगे तो इसमें दो ऑप्शन हमारे पास हैं, इंपोर्ट फोल्डर्स फ्रॉम द कंप्यूटर और इंपोर्ट फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो आर्टिकल 1 बाय 1 करके हम अपनी लाइब्रेरी में लेके आ सकते हैं। जैसे इस पे अब क्लिक करके मैं दिखाता हूँ आपको, इंपोर्ट फ्रॉम माय कंप्यूटर, यहाँ पे कुछ लिटरेचर पड़ा हुआ है, अ पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसमें मैं क्लिक करूँ और सिंपली इस पे ओपन करूँ। ओपन पे क्लिक किया तो ये देखिए अपलोडिंग फाइल 100% हो गई, और ये फाइल इसके अंदर वन रेफरेंस जनरेटर वन फाइल जनरेटेड, वन फाइल अपलोडेड, तो ये यहाँ पे अपेयर हो गया हमारे रेफरेंस के अंदर। रिसेंटली एडिट में जाके देखें तो रिसेंटली एडिट में भी ये अपेयर हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। सर ये जिस तरह अभी आपके कंप्यूटर में सेव्ड हैं डॉक्यूमेंट्स, जी जो आर्टिकल्स हैं, अब वो आर्टिकल्स जब हम डाउनलोड करते हैं गूगल स्कॉलर वगैरह से, तो वो उनको सेव हमें करते हुए ऑथर नेम और ईयर देना पड़ेगा, या एज इट इज हम डाउनलोड कर लेंगे और मेंडले खुद से उसका ऑथर नेम और उसका ईयर जो है वो आइडेंटिफाई करेगा? जी, देखें ये फीचर, जैसे मैंने अभी एक एक डॉक्यूमेंट किया ना, ए पर्सपेक्टिव ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ टाइटल आया है, इसका सोर्स भी नहीं आया, इसका ईयर भी नहीं आया और इसका ऑथर भी नहीं आया। मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये इसकी डिटेल्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट की यहाँ पे राइट पैनल में मुझे नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर मैं, अगर मेरे पास कहीं से इसकी चीज़ें मिसिंग हैं, अगर जैसे गूगल स्कॉलर पे बहुत सारी डिटेल्स मिसिंग होती हैं, समटाइम्स वॉल्यूम नंबर नहीं होता, समटाइम्स जर्नल का नाम का फॉर्मेट ठीक नहीं दिया होता, तो हम इसको मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। और इसका और एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि हम यहाँ पे इसके इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है, ये देखें आइडेंटिफायर्स की। तो इसमें हम अपना DOI या ये आरजिव आईडी, DOI, ISBN नंबर या ISSN नंबर या PMID पबमेड का जो है वो, ये चीजें जब हम इस तरह के लिंक्स जब इसमें देते हैं, नॉर्मली वी हैव द DOID फॉर ईच आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ गुड जर्नल। तो हम जब भी DOI यहाँ पे देंगे और DOI दे के हम उस पर क्लिक कर देंगे, तो ये डॉक्यूमेंट की तमाम डिटेल्स खुद ब खुद एक्सट्रैक्ट कर लेगा। वो उसका जर्नल का नाम, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसके ऑथर्स कौन कौन से हैं, उसके पेज नंबर क्या है, वॉल्यूम नंबर क्या है, या और भी जितनी रेलेवेंट डिटेल्स अवेलेबल होंगी, तो वो तमाम की तमाम उस DOI से जाके डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है मेंडले में कि हमें मैनुअली ये चीज़ें नहीं ऐड करनी पड़ती, जबकि इस तरह के जो आइडेंटिफायर्स हैं, इस आइडेंटिफायर को यूज करते हुए हम वो तमाम डिटेल्स वहां से इंटरनेट से ले सकते हैं। चलिए हम डॉक्यूमेंट की एडिशन की तरफ चलते हैं। आई होप क्वेश्चन आंसर हो गया आपका। जी जी सर। तो जी, हम ऐड न्यू पे चलते हैं। ऐड न्यू पे जाके जिस तरह मैंने अभी आपको फाइल इंपोर्ट करके दिखाई है, तो इसी तरह फोल्डर भी हम कंप्यूटर से इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी फोल्डर को करना है तो हम उस फोल्डर को डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने फाइल को किया। इसी तरह से हम, अगर मैं लिटरेचर के फोल्डर को करना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो वो पूरा पूरा फोल्डर ही इसके अंदर आ जाएगा। जो जो कुछ उस फोल्डर में, जैसे लिटरेचर के फोल्डर में अगर कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ आप कोई कोई डॉक्यूमेंट नहीं पड़ा, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट पड़े होते यहाँ 5 7 10 20 जितने भी आर्टिकल्स पड़े होते, जब मैं पूरा फोल्डर ही यहाँ पे अपलोड कर देता, तो वो पूरा का पूरा फोल्डर में जितने आर्टिकल्स हैं, सबके सब आर्टिकल्स मेरी लाइब्रेरी के अंदर ऐड हो जाते हैं।
इसके अंदर एक और बड़ी खूबसूरत जो एक और कमांड है वो ये है कि इंपोर्ट लाइब्रेरी। कि अगर मेरे पास लाइब्रेरी किसी और फॉर्मेट की पड़ी है, अगर पहले मैं एंड नोट यूज कर रहा था तो मेरे पास अगर एंड नोट की एक लाइब्रेरी पड़ी हुई है जिसमें मैंने कोई 100 150 200 आर्टिकल रखा हुआ है और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मेंडले पे शिफ्ट हो जाऊं, तो ये एंड नोट की लाइब्रेरी को एज इट इज भी पूरी की पूरी लाइब्रेरी इसके अंदर इंपोर्ट कर लेगा। तो हमें आर्टिकल्स को वन बाय वन करके इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है मेंडले का। और जो एक और खूबसूरत फीचर है मेंडले में लाइब्रेरी बनाते हुए, लाइब्रेरी बिल्ड करने में, वो है वॉच फोल्डर की कमांड। वॉच फोल्डर की कमांड हमें अलाउ करती है कि हम एक पर्टिकुलर फोल्डर को मेंडले को बता देते हैं कि आपने इस फोल्डर को कॉन्टिन्यूसली वॉच पे रखना है, और जैसे ही उस फोल्डर के अंदर कोई पेपर ऐड हो वो पेपर ऑटोमेटिकली हमारी लाइब्रेरी में अपडेट हो जाए। तो ये कमांड मैंने किसी और रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में नहीं देखी। वॉच फोल्डर पे क्लिक करें। अब मैं ओके, मैंने एक फोल्डर इस पे लगाया हुआ है। यहाँ आपके पास अगर आपने कोई फोल्डर नहीं ऐड किया हो तो योर वॉच फोल्डर में यहाँ पे ऐड फोल्डर आ रहा होगा। तो मैंने चूंकि एक लगाया हो तो यहाँ चेंज फोल्डर की कमांड मेरे पास आ रही है। तो इस पे मैं चेंज फोल्डर पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ से जाके वर्क एंड स्टफ में, सॉफ्टवेयर में या वर्कशॉप्स में जाके मेंडले वर्कशॉप या लिटरेचर के नाम से किसी एक को मैं क्लिक कर दूं, तो वो यहाँ पर जो उसका पाथ है वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। और जो फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया है, मेंडले विल स्टार्ट वॉचिंग दैट सॉफ्टवेयर, सॉरी फॉर दैट फोल्डर, एंड उसके अंदर हम जैसे कोई आर्टिकल ऐड करेंगे, जो कोई पीडीएफ ऐड करेंगे, तो मेंडले उसको ऑटोमेटिकली अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लेगा। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त फीचर है मेंडले का। सर एक से ज्यादा फोल्डर भी वॉच पे लगा सकते हैं? नहीं, इसमें सिर्फ एक फोल्डर की गुंजाइश है, क्योंकि अगर इस तरह से होता तो देखें, ऐड न्यू में जाके वॉच फोल्डर, मैंने चूंकि एक लगाया हुआ है तो यहाँ उसने चेंज फोल्डर की मुझे कमांड दे दी है। तो ऐड फोल्डर की नहीं आ रही कमांड यहाँ पे। और रिमूव के लिए सर ये जो आपने 3 बटन्स क्लिक किए थे उसको क्लिक जी जी, करेंगे तो वो रिमूव कर। रिमूव हो जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, उसमें यह है कि अगर हम मल्टीपल फोल्डर्स को करना चाहते हैं तो उसको हम इकट्ठा करके और हम एक एक फोल्डर बना के उसके अंदर सारे वो डाल दें, जितने भी है। लेट से अगर मैं डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ डिफरेंट फोल्डर्स बना रहा हूँ, जो मेरे अगर थीसिस में डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, तो वो उन उन कीवर्ड से अगर मैंने डिफरेंट फोल्डर्स बनाए हुए हैं तो तमाम फोल्डर्स को मैं एक अपना लिटरेचर के नाम से फोल्डर बना लूँ और उसमें डाल दूँ। फिर उस लिटरेचर वाले फोल्डर को ये वॉच पे लगा देंगे हम, तो वो उससे वॉच करके तमाम जो पेपर्स उन सारे सब फोल्डर्स में ऐड होंगे, वो सारे के सारे हमारे लाइब्रेरी में ऐड होते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको अपनी लाइब्रेरी को बिल्ड कर सकते हैं। अगर सर किसी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल है, जिस तरह आपका वर्ल्ड बैंक पे नॉर्मली आर्टिकल्स होते हैं लेकिन दे आर नॉट अवेलेबल ऑन गूगल स्कॉलर, तो उसका लिंक अगर हम देना चाहेंगे तो वो कैसे दे सकते हैं? किस तरह से क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा। सर अगर कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का हम हम्म रेफरेंस देना चाह रहे हैं, देयर इज हम्म सम आर्टिकल अवेलेबल ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट, हम्म। तो उसका हम रेफरेंस दे सकते हैं सर इसमें? मेंडले उसको करेगा कैप्चर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से एक जर्नल आर्टिकल का होता है, इसी तरह से वेबसाइट का भी होता है, बुक का होता है, बुक बुक चैप्टर बुक सेक्शंस का होता है। तमाम चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं। लेकिन सर हम आर्टिकल तो सेव करते हैं ना, वो फिर उसको कंप्यूटर में से उठाता है, तो वेबसाइट का तो एड्रेस हम, वेबसाइट का आर्टिकल तो हम सेव नहीं कर सकते कहीं पे? नहीं नहीं, देखिए, जो मैंने अभी पहले आपको बताया कि जैसे गूगल स्कॉलर पे जब हम सर्च कर रहे हैं एक एक पेपर को, और यहाँ मेंडले, इसको जो हमारा मेंडले वेब का जो हमारा बटन था, एक्सटेंशन थी, जब हमने उस पर क्लिक किया है तो वो यहाँ पे अपेयर होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि ये स्क्रीन शेयरिंग की वजह से मेंडले वेब इंपोर्टर, इस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे अपेयर होना चाहिए साइड पे, साइड पैनल में वो आता है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे लिटरेचर सामने आता है, वो सारा का सारा लिटरेचर राइट साइड पे उस पेंडले की उसके अंदर आ रहा होता है। उससे किस तरह से लेते हैं वो मैंने अभी आपको शायद दिखाया था। मैं उसको आपको दोबारा भी करके दिखाता हूँ। आई थिंक मुझे शेयरिंग स्टॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंडले की जो एक्सटेंशन है, इट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ। तो इसको मैं दोबारा करता हूँ। स्क्रीन में शेयर स्टॉप कर रहा हूँ अभी, मैं दोबारा फिर शेयर करता हूँ। जी जी श्योर सर। क्योंकि वर्ड में तो सर हमें जाके मैनुअली फिर उसको
बताना पड़ता है वेबसाइट कौन है, उसका ऑथर कौन है, और उसका उसके बाद ईयर कौन सा है। समटाइम्स ईयर दिया नहीं होता। हम्म। तो मेंडले में ये पॉसिबिलिटी है कि उस वेबसाइट के उस पर्टिकुलर पेज को वो एज अ रेफरेंस कोट कर सके। एक मिनट सर, मैं इसको जरा इससे एक्सटेंशन चेक कर लूँ। जी जी सर, श्योर, टेक योर टाइम सर। जी सर, मैं ये दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन अपेयर हो रही है सबको? जी सर, हो रही है जी। सर। बिल्कुल। अब इसमें जाते हैं। अब ये यहाँ मेंडले का ये अपेयर हो गया हमारे साथ। तो जो भी हम यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास यहाँ पे जर्नल के आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, या बुक्स आ रही होती हैं, बुक्स के रेफरेंसेस आ रहे, चैप्टर्स आ रहे होते हैं बुक्स के, या सेक्शंस आ रहे होते हैं। वो तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं राइट साइड पर, और जिसको भी हम ऐड करना चाहें उसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसके साथ मेंशन्ड है पीडीएफ नॉट फाउंड। जिसका पीडीएफ अवेलेबल होता है, ये देखें व्यू पीडीएफ उसके साथ आ जाता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐड ऐड के बटन से ये मेरी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ, कि आप ये कह रहे थे कि वेबसाइट का अगर मैं एड्रेस इसके अंदर देना चाहूँ, कि मैं अगर अपने रेफरेंस लिस्ट के अंदर किसी वेबसाइट को देना चाहता हूँ, तो उसको किस तरह से करेंगे। जी जी सर। वो मेंडले डेस्कटॉप पे जाएंगे, जैसे हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया है। ऐड न्यू पे क्लिक करके ये ऐड रेफरेंस मैनुअली पे चले जाएंगे, जैसे हम वर्ड में करते हैं। इवन एंड नोट में भी हमें इसी तरह से करना पड़ता है, कि हम रेफरेंस को मैनुअली ऐड करते हैं। और यहाँ पे हम उसका रेफरेंस टाइप पहले सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे, कि हमारी रेफरेंस टाइप क्या है। ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे किसी भी और रेफरेंस मैनेजर के अंदर होती हैं। क्या वो कोई वेब पेज है, कोई वर्किंग पेपर है, या कोई जर्नल आर्टिकल है, या एनी ऑफ दीज ड्रॉप डाउन मेन्यू कुछ भी है, वो हम सिलेक्ट करते हैं। फिर उसकी जो रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पे डाल के ऐड एंट्री करेंगे, तो वो हमारे रेफरेंस लिस्ट के अंदर वो चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है सर, जी। मैं नोट कर लूँ। हाँ जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये स्लाइड भी। और ये हमारी लाइब्रेरी है। डीओआई के थ्रू किस तरह हम यूजिंग आइडेंटिफायर कैसे कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर मैं डीओआई यहाँ पे पुट कर दूँ, जैसे अगर मेरे पास एक ये एनवायरमेंटल गवर्नेंस के नाम से एक पेपर है यहाँ पे, अगर मैं इसका डीओआई, ये ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, डीओआई यहाँ पे लिख के मैं इस पे लुकअप पे क्लिक करूंगा, तो उसकी तमाम डिटेल, जो भी डिटेल्स मिसिंग होगी, जैसे पहले देखें आईएसएस नंबर नहीं अपेयर हो रहा था, अब आईएसएस नंबर भी यहाँ पे आ गया। तो जितनी भी डिटेल्स उसकी मिसिंग होगी वो तमाम, या अगर इनकरेक्ट होंगी तो वो करेक्ट भी कर देगा। देखिए ना, मेटा डेटा अपडेटेड फॉर एनवायरमेंटल गवर्नेंस। जो एनवायरमेंटल गवर्नेंस के नाम से यहाँ मेरी लाइब्रेरी में एक पेपर था, तो उसका जो मेटा डाटा है वो सारा इसने अपडेट कर दिया है। और जो भी मोस्ट रिसेंट ऐप मेटा डाटा इस डीओआई के साथ कनेक्टेड था, इसके साथ अटैच था, वो इसने अपलोड यहाँ पे कर दिया। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखें, ये हम मेनली वेबसाइट से किस तरह से ये कर सकते हैं। सेलेक्ट वेब इंपोर्टर आइकॉन इन योर ब्राउजर टू आइडेंटिफाई रेफरेंसेस यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम योर लाइब्रेरी। अब वो लाइब्रेरी कोई भी हो सकती है। वो लाइब्रेरी हम स्कोपस की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि मेंडले जो है ये एल्सेवियर ग्रुप की एक प्रोडक्ट है। तो स्कोपस का जो डाटाबेस है sciencedirect.com से, या स्कोपस की इटसेल्फ डॉक्यूमेंट से भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं से भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स या रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। ये वेब इंपोर्टर के थ्रू हम किस तरह से ले सकते हैं।
आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि जो साइड पैनल आया था हमारे पास उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। व्यू पीडीएफ्स के थ्रू हम पीडीएफ्स को देख सकते हैं, रेफरेंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट एक कलेक्शन टू ऐड टू, मतलब ये हमारे पास है कि हम कितनी कलेक्शन को इकट्ठा ही कर सकते हैं, सब के सब हम, जैसे मेरे पास मैंने इस पे किया था, तो अगर मैं जितने सामने अपेयर हूँ सबको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट ऑल करूँ और सब के सब मेरे लाइब्रेरी में ऐड हो जाएंगे। और इसके अंदर जो मेरी लाइब्रेरी है पीडीएफ है उसको मैं देखना चाहूँ कि क्या वो पीडीएफ काम की है, क्या मैं अपनी लाइब्रेरी में ऐड करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, तो देन आई कैन ऐड दैट टू माई लाइब्रेरी। अवॉइडिंग डुप्लीकेट्स, एडिंग ए डाउनलोडेड पीडीएफ टू एन एग्जिस्टिंग रेफरेंस। तो अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास एक बटन है डुप्लीकेट्स का, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास कोई डुप्लीकेट है या नहीं है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स अभी इस वक्त तक मेरे पास कोई नहीं है। तो अगर डुप्लीकेट्स होते तो यहाँ पेयर होते तो डुप्लीकेट्स को मैं रिमूव भी कर सकता था। सर एक यहाँ क्वेश्चन है। चैट में मैं, लेट मी सी, फेसिंग सम टाइम्स दिस इशू एंड आई एम शेयरिंग स्क्रीन, पीडीएफ शो नहीं हो रहा। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, इसका ये पॉसिबल है कि जो इसका पीडीएफ है या तो वो अवेलेबल ना हो या तो फिर वो फॉर्मेट सपोर्टेड ना हो। तो इस वजह से या फिर वो फाइल करप्ट हो। इसको आप रिमूव करके अगर आपके पास इसका पीडीएफ डाउनलोडेड है तो फिर उस पीडीएफ को आप दोबारा से इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। तो इस तरह से वो मैं आपको दोबारा इस पे जा करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास रेफरेंसेज हैं तो यहाँ पे पीडीएफ अगर किसी का, ये देखें फाइल, यहाँ मेरे जो लेटेस्ट ये अभी हमारे पास मैंडले है इसमें जिसकी फाइल यहाँ पे अटैच्ड है उसके साथ ही ग्रीन कलर का टिक मार्क हुआ हुआ है, और जिसके साथ अटैच नहीं है उसके साथ इस तरह से हुआ हुआ है। एक और ये देखें, ये है सम फाइल्स डाउनलोडेड, जिसपे कुछ डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है और साथ में टिक की ऑप्शन भी आ रही है। तो उस पर है कि कुछ फाइल्स की अब डाउनलोड हो चुकी हैं, कुछ नहीं हुई है। एक ही फाइल है तो उसका कुछ पार्ट हो गया और कुछ पार्ट रहता है, यानी वो कंप्लीट डाउनलोड अभी नहीं हुई है। तो इसको आप रिमूव करके, और अगर आपकी कोई वहाँ फाइल करप्टेड है या फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं है तो उसको रिमूव करके आप उसको दोबारा से भी फाइल को अटैच किया जा सकता है इसके साथ। जी सलमान साहब, आपका क्या क्वेश्चन था? सर मेरा ये था कि जब हम वॉच फोल्डर लगाते हैं तो उसमें वर्ड फाइल भी हो सकती है, एक्सेल भी, तो वो जी जी सभी जी को रीड करेगा या सिर्फ सर, वो सबको रीड करेगा। हाँ जी, सबको रीड करेगा। इसकी फाइल सपोर्टेड में वर्ड भी आता है, पीडीएफ भी आता है, एक्सेल भी आता है इसके अंदर। ठीक है। जी। तो और इट इज बेटर कि हम उसका अलहदा फोल्डर बनाएं। उसमें हम कलेक्शन में जाके हम उसके बना सकते हैं सेपरेट, लेकिन वो मेन लाइब्रेरी में ऑल रेफरेंसेज में तो वो नजर आएगा इकट्ठे ही। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, डुप्लीकेट्स के बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सपोर्टिंग रेफरेंसेस। कि अगर हमें किसी, जो ये भी ऑलरेडी हम बात डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि दरमियान में क्वेश्चन आंसर की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंटेशन की ट्रैक से डिफरेंट डिस्कशन में चली गई थी, तो इसीलिए हम डिफरेंट जो हमारे पास बिबटेक्स की अगर हमारी को फाइल अवेलेबल है हमारे पास, या हमारे पास एंड नोट की को फाइल अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, या ये रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम RIS की है या जोटेरो की है, तो हम डिफरेंट जो रेफरेंस मैनेजमेंट की हमारे पास लाइब्रेरीज बनी हुई है, हम वहाँ से भी लाइब्रेरीज को पूरी की पूरी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम इंडिविजुअल रेफरेंसेस को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी लाइब्रेरी को बिल्ड करते हैं। तो अभी ये जो हमने सारा डिस्कस किया, दैट वाज बिल्डिंग बिल्डिंग द लाइब्रेरी, कि हम और मतलब लाइब्रेरी बिल्ड किस तरह से करते हैं। अब लाइब्रेरी हमारी बिल्ड हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग आवर लाइब्रेरी, कि हमने लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है। सॉरी, मैनेजिंग आवर लाइब्रेरी। तो मैनेज किस तरह से करना है, अब ये चीज़ भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, कि ये साइट पे जो कमांड्स हैं, जो बटन्स हैं, ऑल रेफरेंसेस, रिसेंटली एडिट, रिसेंटली रेड, फेवरेट्स, माय पब्लिकेशंस, ट्रैश या डुप्लीकेट्स, ये तमाम चीज़ें क्या हैं। और ये स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार आइटम्स टू मार्क देम एज फेवरेट्स। जिस पे हम स्टार पे क्लिक करेंगे और स्टार येलो होगा तो वो हमारा फेवरेट में चली जाएगी। जब हम फेवरेट्स पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ फेवरेट की कमांड दी हुई है, जो हमने जिस पे स्टार पे क्लिक किया होगा, जिसके साथ स्टार येलो होंगे वो हमारे फेवरेट्स में फेवरेट डॉक्यूमेंट्स होंगे, और जिनके साथ नहीं होगा तो वो फेवरेट वाले फोल्डर में नहीं जाएंगे जब हम फेवरेट को चेक कर रहे होंगे। और ये जो ग्रीन डॉट है हमारे मैंडले डेस्कटॉप पर, ये ग्रीन डॉट ये शो हो रहा है कि ये वाला डॉक्यूमेंट अभी रेड नहीं है, इसको हमने रीड नहीं किया है। जिनके साथ नहीं है वो इसका मतलब है रीड हो चुका है।
पर्सपेक्टिव ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसको मैं रीड करता हूँ और रीड करने के बाद मैं इसको देखूंगा कि क्या बना इसका ये। इसको बंद करके देखते हैं। देखिए इसके साथ ग्रीन डॉट था वो खत्म हो गया और अब मतलब मैंडले को ये पता चल गया ये डॉक्यूमेंट रीड हो चुका है। ये रेफरेंस मैनेजमेंट और साइटेशन मैनेजमेंट से काफ़ी बढ़ के इसके फंक्शन हैं। जैसे पीडीएफ, हमें पीडीएफ एडोब रीडर या उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फंक्शन भी ये दे रहा है। जैसे हम पीडीएफ हमें अलग से एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है पीडीएफ रीडर, तो उसके लिए अब मैंडले के होते हैं उसकी ज़रूरत भी हमारे लिए नहीं रहती हमारे पास। और हम इस तरह से हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं अपने पेपर्स की। जैसे अ, हमारे पास लाइब्रेरी है, लेट्स गो टू द मेंडले डेस्कटॉप। ये जो मेरे पास लाइब्रेरी है, इसमें जाऊं और मैं अगर ऑथर्स के हिसाब से इसको सॉर्ट करना चाहूं तो मैं क्लिक करूंगा तो ऑथर्स के हिसाब से सॉर्ट हो गया। ये आप देख रहे हैं कि ऑथर्स को ये इसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले जिनके ऑथर्स नहीं थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसके बाद फिर ए वाले ऑथर्स आ गए, बी सी, और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ चुका है। दोबारा क्लिक करूंगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, जेड से स्टार्ट कर देगा। तो लाइक वाइज अगर मैं ईयर वाइज करना चाहूँगा, सबसे पुराने रेफरेंस पहले आ जाएं या सबसे रिसेंट रेफरेंस पहले आ जाए, तो मैं क्लिक करूंगा और ये सबसे पुराने से स्टार्ट हुआ, जिनके साथ ईयर ऑफ पब्लिकेशन अवेलेबल नहीं था वो सबसे पहले आ गया, और फिर सबसे ओल्डेस्ट से न्यू की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं दोबारा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ, दोबारा ईयर पे क्लिक कर दूंगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे सामने ही अपेयर हो जाएंगे। समटाइम जब हम अपने रेफरेंसेस को मैनेज कर रहे होते हैं या हमें रिसेंट रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा हमें कि लाइब्रेरी में हम एक एक करके ढूंढें कि हमारे रेफरेंस कौन से हैं, रिसेंट कौन से हैं या पुराने कौन से हैं। तो हमें सम टाइम किसी सेमिनल पेपर का रेफरेंस देना पड़ता है, या हमें को रिसेंट, हम चाहते हैं कि पिछले 2 साल 3 साल के हमारे पास रेफरेंसेस आए जो हम अपने डिस्कशन के पार्ट में लिखें या कहीं पर हम उसको लिखना हो, तो हम ईयर वाइज उसको सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह टाइटल वाइज भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं। सोर्स यानी जर्नल वाइज भी जो उसका सोर्स है उसके हिसाब से कर सकते हैं, और डेट एडिट के हिसाब से भी कि किस तारीख को हमने इसको ऐड किया है। इस पर क्लिक करें, ये देखिए सबसे पुराना रेफरेंस मेरी लाइब्रेरी में फर्स्ट ऑफ मार्च को था, और सॉरी 1 मार्च को नहीं, ये 3 जनवरी 2017 को था। और अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ तो जो रिसेंट अभी मैंने 11:39 AM पे एक रेफरेंस ऐड किया तो वो नज़र आ रहा है, उसके बाद फिर 20 जुलाई वाले नज़र आ रहे हैं रेफरेंसेस। और लास्ट जो कॉलम है वो है फाइल का। ये जो ग्रीन चेक मार्क लगा हुआ है, ग्रीन मार्क साइन लगा हुआ, इसका मतलब है कि इसके साथ पीडीएफ या कोई भी फाइल अटैच है। और अगर ये जिसके साथ नहीं है, इसका मतलब उसके साथ फाइल अटैच नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ फाइल अटैच करना चाहूँ तो मैं इसके साथ फाइल अटैच भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है तो मैं यहाँ पर जाके और इसकी फाइल को अटैच कर सकता हूँ। मैं कोई फाइल इसकी मैं अटैच करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली फाइल करना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा और मैं इसके साथ वो फाइल, ये अपलोड हो रही है, देखिए 100% अपलोड हो गई। और यहाँ पर ये देखें फाइल भी नज़र आ रही है। और मैं इस इंफॉर्मेशन को जब बंद करूँगा तो यहाँ पर इसकी ये डाउनलोड कर दें, ये सामने आ जाएगी हमारे कि ये डाउनलोड हो चुकी है। देखें अभी ये डाउनलोड हो रही है। दोबारा क्लिक करते हैं, जैसे ये कंप्लीट ओपन हो जाएगी तो वहां पर भी वो ग्रीन साइन हमारे सामने अपेयर हो जाएगा। तो लाइब्रेरी मैनेज में ये तमाम जो हैं, जो हमारी स्लाइड में चीज़ें मार्क्ड हैं, ये हमने डिस्कस कर ली हैं। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं कलेक्शंस पे। हम अपनी डिफरेंट कलेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन से मुराद मेरे लाइब्रेरी को मैं अपना किस तरह से सॉर्ट करता हूँ। अगर मैं अपनी लाइब्रेरी को डिफरेंट कीवर्ड्स के हिसाब से सॉर्ट करना चाहूँ, कि मेरे पास अगर मैं काम कर रहा हूँ एनवायरनमेंट और टूरिज्म पर, एनवायरनमेंट टूरिज्म और गवर्नेंस पर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एनवायरनमेंट के से रिलेटेड जो पेपर्स हैं वो सेपरेट कलेक्शन में पड़े हों, टूरिज्म से रिलेटेड सेपरेट कलेक्शन में पड़े हों, और गवर्नेंस से रिलेटेड सेपरेट कलेक्शन में पड़े हों। तो मैं यहाँ 3 डिफरेंट कलेक्शंस, 3 डिफरेंट फोल्डर्स बना दूंगा। एक मैं बनाता हूँ एनवायरनमेंट रिलेटेड और एक मैं बनाता हूँ जी टूरिज्म रिलेटेड। ठीक है, इस तरह से मैं अपने कीवर्ड्स के हिसाब से कलेक्शंस भी ऐड कर सकता हूँ। और फिर मैं जो उस कलेक्शन पे ऐड करूंगा तो देखें इसमें नो रेफरेंस इन दिस सेक्शन इन दिस कलेक्शन, अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके पीडीएफ को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। वो मैं अपने कंप्यूटर से भी ऐड कर सकता हूँ या अपने हर रेफरेंस पे सिलेक्ट करके, जैसे ही मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूशन एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस है, तो ये मेरा अगर एनवायरमेंट रिलेटेड पेपर है तो मैं इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे ऑर्गेनाइज में जाऊँगा और ऑर्गेनाइज में ऐड टू कलेक्शन करूँगा। ऐड टू कलेक्शन, मेरे पास 2 कलेक्शन अवेलेबल है यहाँ पे, एनवायरनमेंट की और टूरिज्म की।
तो मैं एनवायरनमेंट पे अगर क्लिक करूँ ऐड, तो ये मेरे एनवायरनमेंट वाले में ऐड हो जाएगी। अब मैं एनवायरनमेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक रेफरेंस यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है। ये सब ये देखें, ये आप सबको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। और टूरिज्म वाली कलेक्शन में भी कोई ऐड नहीं है। इसी तरह से एक कलेक्शन ये अब मुझ पे है कि मैं किस तरह से अपने थीसिस में, जब थीसिस में काम करते हुए या रिसर्च पेपर्स पे काम करते हुए मैं किस तरह से कलेक्शन अपनी बनाता हूँ। किस तरह से, क्या मैं थीम वाइज बनाता हूँ, कीवर्ड्स वाइज बनाता हूँ, या मैं डेट वाइज अपनी कलेक्शन बनाता हूँ, या फिर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जर्नल्स के आर्टिकल्स की अलग कलेक्शन बना लेता हूँ, बुक्स के अलग कलेक्शन बना लेता हूँ, बुक चैप्टर्स के अलग कलेक्शन बना लेता हूँ, या इसके अलावा मेरे पास कुछ और लिटरेचर अगर अवेलेबल है तो मैं उसकी कलेक्शन अलग बना लेता हूँ, ताकि मैं जब सिर्फ जर्नल आर्टिकल्स को पढ़ना हो तो मैं जर्नल्स पे क्लिक कर लूँ, अगर बुक चैप्टर्स को या बुक्स को पढ़ना हो तो मैं उस पर सेपरेट कलेक्शन पे क्लिक कर लूँ। तो इस तरह से हम कलेक्शंस को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कलेक्शंस के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है वो है मेटा डाटा की। मेटा डाटा, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, कि मेटा डाटा किस तरह से हम एक आर्टिकल का अपने ऐड कर सकते हैं। हम अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं, ऑल रेफरेंसेस पे क्लिक करते हैं, और जब मैं किसी भी एक पेपर पे क्लिक करूंगा, अपने एक रेफरेंस पे क्लिक करूंगा, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट एनालिसिस ऑफ द आइलैंड टूरिज्म, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसका मेटा डाटा क्या है कि उसकी सारी डिटेल्स एक पेपर की जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जर्नल की का आर्टिकल है, क्या ये हम डिसाइड कर लें कि ये जर्नल का ही आर्टिकल है, या ये कोई इंसाइक्लोपीडिया आर्टिकल है, या ये कोई बुक का सेक्शन है, या बुक है, या कोई और चीज़ है। ओके, दिस इज अ जर्नल आर्टिकल। उसके बाद हम कहते हैं इसका टाइटल क्या ठीक है, जो हमने वो चेक किया, क्या अगर सही है तो उसको लगा दें। ऑथर्स की डिटेल क्या ठीक है, सी मोर। देखें ये सारे ऑथर्स वेल, ऑल आर करेक्ट। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या जर्नल का नाम ठीक है, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और ये पेज नंबर है। पेज नंबर हमें नजर आ रहा है कि 197 है, जबकि इस तरह से पेज नंबर नहीं होता। 197 से को 210 तक होगा, या अगर 10-12 पेजेस का आर्टिकल है तो इसकी जो पेज नंबर्स हैं उसकी लिमिट होनी चाहिए थी कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट भी यहाँ पे गिवन है, कोई फाइल अटैच नहीं है इसके साथ। अगर तो मेरे पास इसका पीडीएफ अवेलेबल है या कोई फाइल अवेलेबल, तो मैं इसके साथ फाइल अटैच कर सकता हूँ। इसकी अगर यूआरएल अवेलेबल है तो मैं इसका यूआरएल यहाँ पे कर सकता हूँ। अब देखें डीओआई यहाँ पे इसका अवेलेबल है। मैं डीओआई अगर नहीं था तो मैं डीओआई ढूंढ के यहाँ पे रख इस पुट करता और लुकअप वाले बटन पे मैं क्लिक कर देता। तो ये इस डीओआई से रिलेटेड जितना भी मेटा डाटा अवेलेबल है वेबसाइट पर, जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, जो अपडेटेड इसका मेटा डाटा होगा वो सारा का सारा मेटा डाटा अपडेट कर देगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आप ये देखेंगे कि मेटा डाटा अपडेटेड फॉर दिस पेपर। और अब ऊपर जाके देखते हैं, स्टिल इसका मतलब है कि ओशन एंड कोस्टल मैनेजमेंट जर्नल का नाम है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। अब पहले सिर्फ 197 था, अब यहाँ पे उन्होंने कोई शायद पेपर नंबर भी ऐड कर दिया है। ये देखिए पेज नंबर्स, ये पेज नंबर जो है वॉल्यूम नंबर 197 है, और ये पेज नंबर्स हैं ये 105326। अभी भी दिस सीम्स इनकरेक्ट। तो अब हमें चाहिए कि अगर हम इसको करेक्शन करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स कि हमें इसको करेक्ट करना चाहिए, इसी तरह से हमें थीसिस में अपने पेपर में इसको साइड नहीं करना चाहिए। तो वी शुड गो बैक टू दी टू दैट पेपर। हम इस जर्नल को ओपन करें, इस पेपर को ढूंढें, और इस पेपर से करेक्ट पेज नंबर्स और उसका कोई इशू नंबर है वो वहां से ढूंढ के यहाँ पे हम फिल कर दें। And this is a way to update our metadata of all the library. Usually ये होता है कि जब हम DOI पे लुकअप का क्लिक करते हैं तो हमारे पास रिसेंट अपडेटेड हो जाता है, और उसमें कम एरर्स होते हैं। लेकिन समटाइम्स इस तरह से होता है कि कुछ जो जर्नल्स हैं वो इतने अच्छे जर्नल्स नहीं हैं, तो वो चीज़ों को अपडेट नहीं रखते हैं, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी में भी मेटा डाटा अपडेटेड नहीं होता। We have already discussed this, and Can I ask a question, sir? sure, please. सर DOI के ऊपर जब मैंने क्लिक किया है तो मुझे जो रिप्लाई आया वो तो है इंटीग्रेटिंग डिजिटल इकोनॉमी एंड द जर्नल नेम आ रहा है। उसमें वो कह रहा है एरर अकर व्हाइल लुकिंग अप द DOI। तो इसका क्या मतलब होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि डीओआई जो है वो फंक्शनल नहीं है, ठीक है, ठीक तरह से फंक्शनल नहीं है, और डीओआई ने आपको मेटा डाटा अपडेट करके नहीं दिया। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप उस आर्टिकल को मैनुअली सर्च करें, और गूगल स्कॉलर से जाके, या फिर वो जर्नल खोलें जिस जर्नल का वो पेपर है, अगर आपके पास जर्नल का नाम है, वो जर्नल को खोल के वहां पे सर्च करके उस पेपर के टाइटल से सर्च करें, और उसकी सारी डिटेल्स को मैनुअली इसके अंदर पुट कर लें। ओके सर, थैंक यू।
तो हमने कलेक्शंस की भी बात कर ली कि हम किस तरह से कलेक्शन में उसको ऐड कर सकते हैं डिफरेंट पेपर्स को, एंड adding references to groups and collections, we have already discussed that. Adding multiple references to a collection, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कलेक्शंस जब बना रहे हैं डिफरेंट, तो हम ज़्यादा पेपर्स को भी, ज़्यादा रेफरेंसेस को भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आप सबको ये अपेयर हो रहा है या इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं? ये सर देखिए। थोड़ा सा बड़ा कर दें। हाँ जी, मैं इसको अपने मेंटली डेस्कटॉप पे करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अगर मैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये टूरिज्म से रिलेटेड पेपर है, और ये टूरिज्म एनवायरनमेंट दोनों से रिलेटेड है, और लाइकवाइज ये टूरिज्म से रिलेटेड पेपर है, मैं मल्टीपल रेफरेंसेस को एट द सेम टाइम भी कर सकता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मुझे वन बाय वन करना पड़ेगा। ऐड टू द कलेक्शन, ये टूरिज्म से रिलेटेड है तो मैं टूरिज्म में ऐड कर दूंगा, और अगर ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो तो ये वहाँ पे मैंने ऐड कर देना था। टूरिज्म में जाके देखें, वहाँ पे मेरे पास ये टूरिज्म की कलेक्शन में ये अपीयर हो रहे होंगे। अगेन गो बैक टू ऑल द रेफरेंसेस, और आफ्टर दैट व्हाट इज नेक्स्ट? सर्चिंग योर लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी में सर्च भी कर सकते हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत फीचर है। किसी भी रेफरेंस मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर है, हम सर्च कर सकते हैं कि हम किसी भी पेपर को सर्च करना है। इवन अगर ये हमारा जो जो की टर्म मैं लिख रहा हूँ, अगर ये किसी जैसे लेट से यहाँ पर डेट बर्डन, अगर मैं ढूंढना चाहूँ डेट बर्डन से रिलेटेड कितने आर्टिकल हैं, या सिर्फ डेट ही कितनों में अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेट लिख के इसको सर्च करेंगे, और वहाँ पे डेट बर्डन या एक ही आर्टिकल ऐसा था, एक ही हमारा रेफरेंस ऐसा था जिसमें जो डेट का वर्ड है उसके टाइटल में आ रहा था, तो वो सामने आ गया। जैसे जब हम डिस्कशन का पार्ट लिख रहे होते हैं अपने फाइंडिंग्स में, जब हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, और जब हम अपना डिस्कशन का पार्ट लिख रहे होते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि दो वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव किस किस आर्टिकल ने दिया है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव है, या वो जो कीवर्ड्स हैं, तो उन कीवर्ड से मैं यहाँ पे सर्चिंग कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि FOSU, यानी यहाँ भी ऐसा नहीं है रिस्ट्रिक्ट कि मैं सिर्फ टाइटल के अंदर एक वर्ड होगा तो वो आएगा। टाइटल में, ऑथर्स में, या जर्नल में, किसी के अंदर भी अगर वो कीवर्ड होगा जो आप सर्च कर रहे हैं, तो वो आपके सामने अपेयर हो जाएगा। अगर देखिए एनवायरनमेंट में सर्च करता हूँ कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड मेरे पास कितने पेपर्स हैं, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड देखिए जितने पेपर्स हैं वो सामने आ गया। और वो ना सिर्फ उन्होंने पेपर के टाइटल में हाईलाइट किया, बल्कि देखिए एक जगह पे उन्होंने ऑथर्स के अंदर भी आया हुआ है। दो दिस इज अ मिस्टेक, क्योंकि हमने जब रेफरेंस ही ऐड किया तो हमें उसको मेटा डाटा को अपडेट करना चाहिए था। मेटा डाटा इसका अपडेटेड नहीं है। और इवन देखें, जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का ये पेपर है, तो अगर जर्नल के नाम में हो वो कीवर्ड, या आर्टिकल के टाइटल में वो कीवर्ड हो, या वो ऑथर के नाम के अंदर ही क्यों ना हो, तो वो चीज़ें, वो तमाम पेपर जो हमारे सामने ले आएगा, ताकि फिर उनमें से हम सर्च करना हमारे लिए ईजी हो जाए। अगर हम टूरिज्म करते हैं तो टूरिज्म रिलेटेड देखें, टूरिज्म मैनेजमेंट एक जर्नल है, और यहाँ ऑथर्स के नाम में भी टूरिज्म दिया हुआ है, और आर्टिकल्स के टाइटल में भी टूरिज्म दिया हुआ है। वो तमाम चीज़ें भी हमारे पास सामने आ सकती हैं। सर्चिंग के बाद ये, अब हम इसका जो सेकंड फंक्शन है ना वो पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी हमने बिल्ड कर ली थी, लाइब्रेरी को अब हम मैनेज किस तरह से कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैनेजिंग द लाइब्रेरी। तो सिलेक्टिंग टैग्स टू रिफाइन अ सर्च। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स, हम हर अपने पेपर के अंदर टैग्स अप्लाई करते हैं। टैग्स जिस तरह से PDF का भी काम करती है, जो हमारी रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये हम इसका जो नेक्स्ट ये है रीड एंड एनोटेट, इसके अंदर जाके हम इसकी डिटेल्स आएंगी सारी, तो उसमें हम टैगिंग करेंगे। अभी आगे चलते हैं तो आपको टैगिंग क्या, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम टैगिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है रीड एंड एनोटेट। PDF व्यूअर की तरह, या PDF एडोब एक्रोबैट रीडर की तरह, जैसे आप PDF को रीड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एंड इफ वी हैव Mendeley then there is no need to download any other additional software to read your PDF files। तो PDF जिसके साथ अटैच है, या कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा अगर अटैच है किसी के साथ, तो सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा। जैसे हम ये देखते हैं कि मेरी डेस्कटॉप Mendeley में ये बहुत सारी फाइल्स हैं जिनके साथ फाइल्स अटैच हुई हुई हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ किसी एक पे, एनवायरमेंटल गवर्नेंस ए प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क टू गाइड डिजाइन इवैल्यूएशन, इस पर क्लिक करते हैं, और मैं इस पर रीड पे क्लिक करता हूँ। देखें इसका जो PDF है वो मेरे सामने ओपन हो गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये रीडेबल हो जाए।
इसको रीड करते हुए जो ये पूरा फंक्शन है, इसको हम अभी डिस्कशन के थ्रू हम सारी 3-4 स्लाइड्स को इकट्ठे ही पढ़ लेते हैं। इसको रीड करते हुए हम इसमें टैगिंग कर सकते हैं। टैगिंग से मुराद क्या है कि देखें, ये जिस तरह पीडीएफ के अंदर हमारे पास कमांड बटन होते थे, उसी तरह से यहाँ भी बटन है। हम हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट टेक्स्ट। लेट से आई वांट टू हाईलाइट सम टेक्स्ट। मैं अब इसको पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि यार ये जो चीज़ है इसमें ये बड़े काम की एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्लाइमेट चेंज इज द ग्रेटेस्ट ग्लोबल थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ इन द 21st सेंचुरी। मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मैं इसको भी अपने थीसिस के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मैं इस बात को डालना चाहता हूँ, और मैं इस आर्टिकल को वहाँ साइट कर दूंगा। तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, और मैं हाईलाइट किसी भी कलर में कर सकता हूँ। वी हैव येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, एनी कलर दैट यू लाइक। तो यूजुअली हम येलो कलर यूज़ करते हैं इसके लिए। तो ये इस पर क्लिक करें तो देखिए ये येलो कलर में हाईलाइट हो चुका होगा। ये सॉरी, ये रेड कलर में हो चुका है। इस कलर में चेंज करना चाहूँ तो इसको मैं येलो कलर में भी हाईलाइट कर सकता हूँ। इसका कलर आई डोंट नो कि चेंज नहीं हो रहा। एनी हाउ, तो द पर्पज वाज टू लेट यू नो कि हम इसमें हाईलाइटिंग कर सकते हैं। हम कलर्स, हम इसमें टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं जितना भी मेरे, अब देखें अभी येलो कलर में हाईलाइट हो रहा है। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, वो हम उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ब्लू कलर में देखें हाईलाइट, उसको हम कर सकते हैं, किसी भी कलर में कर सकते हैं। तो हाईलाइट के बाद हम इसमें टैगिंग कर सकते हैं। जो अभी एक फंक्शन हमने जो लास्ट स्लाइड पे पढ़ा टैगिंग का, तो वो टैगिंग हम कर सकते हैं। मैं अब इस टेक्स्ट को जो मैंने पढ़ा है, मैं अब यहाँ इसके साथ एक टैग लगाना चाहता हूँ। टैग, या इन अदर वर्ड्स में यहाँ कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। ये बटन है कमेंट का या टैगिंग करने का। तो इसमें मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर एक टैग ऐड कर दूंगा, या मैं कमेंट ऐड कर दूंगा। जहाँ पे मैं इसको मैं यहाँ से पिक करके दोबारा से वो एरो सेलेक्ट वाला एरो दबाऊं, और मैं इसके बारे में करना चाहता हूँ। मैं यहाँ इसको यहाँ लिखना चाहता हूँ कि दिस इज रिलेटेड टू दी क्लाइमेट चेंज एंड GHGs। ये मैंने एक टैग दी है कि मैं ये टैग अपने सारे जब आर्टिकल में पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में या GHGs के बारे में, GHGs के बारे में मैं अगर जब ढूंढूंगा तो टैग्स को भी सर्च कर देगा कि किस आर्टिकल में ये टैग कहाँ पर लगा हुआ है। अगर एक टैग में देख मैंने यहाँ पे लगाया ना, तो एक टैग मैं नीचे जाके कहीं और लगाना चाहता हूँ कि जैसे हेल्थ केयर सेक्टर इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द क्लाइमेट क्राइसिस एंड देयरफॉर हैज बीन इंपॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग इट। अब मैं यहाँ पे टैग अप्लाई करना चाहता हूँ, सिलेक्शन करूँ यहाँ से पहले, और यहाँ पे मैं टैग अप्लाई करना चाहता हूँ। इफ द हेल्थ केयर सेक्टर वर अ कंट्री, इट वुड बी द 5th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू GHGs ऑन द प्लेनेट, अकाउंटिंग फॉर 4 to 8.5% ऑफ द GHGs। अब मैं इसके साथ एक टैग अप्लाई करना चाहता हूँ, क्लिक कर दूँ, और मैं यहाँ पे एक टैग अप्लाई कर दूँ कि दिस इज रिलेटेड टू दी क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ। ये एक और मैंने टैग अप्लाई कर दिया इसके साथ। तो जब मैं पेपर्स में टैग इस तरह से अप्लाई करता हूँ, तो ये टैग बाद में अगर मैं सर्च करूंगा तो इस तरह से मैं टैग्स को सर्च भी कर सकता हूँ। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ से मैं अपना ये PDF को क्लोज करता हूँ, और यहाँ से मैं अपने अगर टैग्स को सर्च करना चाहूँ तो क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन, आई कैन सर्च इट थ्रू द टैग्स। टैग्स की ऑप्शन कहाँ है? इसमें हम इस तरह से जी टैगिंग कर सकते हैं, और टैग्स को हम सर्च भी कर सकते हैं। आई विल लेट यू नो कि हमने टैग्स को सर्च किस तरह से करना है। तो प्रीवियस विंडो पे आई थी सर, डाउन जी 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 जी। मेन विंडो। किस विंडो पे सर? इसमें राइट बॉटम पे देखें सर, टैग्स आ रहा है। ये आप, ये अभी जो विंडो क्लोज की है इसको दोबारा ओपन करें सर, व्यू जी। जो हाँ जी, इसमें ये नीचे टैग्स टैग्स। हैं जी, बिल्कुल ये टैग्स हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो रीडिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और हम इसमें टैग्स अप्लाई कर सकते हैं। या जो कमेंट्स हैं वो हम कमेंट्स भी इसमें कर सकते हैं। एंड ये चीज़ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम किस तरह से उसके अंदर कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। एंड
दिस इज ऑल्सो हाईलाइटिंग एंड एनोटेटिंग, किस तरह से हम एनोटेशन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट, अगर मैं इसको समराइज करूँ सारी चीज़ को, तो ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, उसके अंदर हम अपने कमेंट्स ऐड करते हैं, स्टिकी नोट्स ऐड करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम मेंडले को भी अपने पीडीएफ व्यूअर के तौर पे और पीडीएफ एडिटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर हम अपनी तमाम जो हमारा लिटरेचर है उसकी रीडिंग कर सकते हैं। ये था जी हमारा रीड एंड एनोटेट, हाईलाइट डॉक्यूमेंट्स एंड यूजिंग द नोटबुक। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट फीचर है, साइट सीमलेसली। साइटेशन किस तरह से देनी है, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि जब हम काम कर रहे हैं, जब हम अपने राइटिंग कर रहे हैं, तो हम अपने वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में साइट किस तरह से करते हैं। अभी हमने जो मैंडले साइट का बटन, एक 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 कमांड उसके अंदर हमने ऐड की थी मैंडले साइट की, तो उसको हम देखते हैं कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम वर्ड में जाते हैं, अपने वर्ड में जाके, एक मिनट, हम इसकी जनरेटिंग इन टेक्स्ट साइटेशन इन वर्ड, और स्लाइड्स एक दफ़ा देख लेते हैं कितनी कवर हो जाएंगी इसके साथ। तो देन आई विल गो टू द वर्ड, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी एंड फ्रॉम अपडेट फ्रॉम द लाइब्रेरी। हाँ जी, हम वर्ड में जाते हैं, ये वर्ड की फाइल खुली हुई है। यहाँ पर अगर मैं कोई भी बात लिखता हूँ, जैसे मैंने अभी हमने एक आर्टिकल से पढ़ा था, क्लाइमेट चेंज इज दी लार्जेस्ट या फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर to the health, what was that, healthcare, या या हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पे साइटेशन देना चाहता हूँ कि मैं साइट किस तरह से करूँगा। तो यहाँ पे मैंडले साइट पे जो बटन है, ये हमें हेल्प करेगा कि हमें साइटेशन किस तरह से देनी है अपने डॉक्यूमेंट्स में, वाइल राइटिंग आवर थीसिस और राइटिंग द पेपर। मैंडले साइट पे हम क्लिक करेंगे, और मेंडले साइट पे हमारे पास साइट पे हमारी पूरी की पूरी लाइब्रेरी यहाँ पे हमें नज़र आ रही होगी, जो हमारी लाइब्रेरी हमने वहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने सारे रेफरेंसेस के अंदर हम इसको सर्च करेंगे कि किस तरह से हम ये देखें, सर्चिंग लाइब्रेरी। अब ये मैंने अगर एक बात पढ़ी थी, या पर्सपेक्टिव ऑन द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में से, तो मैं इसकी साइटेशन डायरेक्ट भी इंसर्ट साइटेशन कर सकता हूँ, और मैं इसको इस पर क्लिक करके इसको इस तरह से भी ऐड इंसर्ट वन साइटेशन कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे दो साइटेशन देना चाहता हूँ, तो दो साइटेशन इकट्ठी करके भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। हम साइट करके देखते हैं, बारी बारी भी करके देखते हैं, तो किस तरह से होगा कि अगर मैं एक साइटेशन देना चाहता हूँ, फिर तो इंसर्ट साइटेशन का बटन भी काम करेगा, और अगर मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो फिर यहाँ से इंसर्ट वन साइटेशन कर दूंगा। ठीक है, और ये देखें, एक साइटेशन इसने ऐड कर ली। अब साइटेशन का ये जो स्टाइल है, ये साइटेशन का स्टाइल उस तरह से नहीं है नॉर्मली जो हम सोशल साइंसेज में यूज़ करते हैं। सोशल साइंसेज में हम आमतौर पर एपीए स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ से हम साइटेशन का स्टाइल, साइटेशन सेटिंग में जाके साइटेशन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। साइटेशन का स्टाइल एपीए 7 ही हमने सिलेक्ट करना था, वो वही सिलेक्ट हुआ हुआ है। बट आई थिंक मेटा डाटा में कोई प्रॉब्लम है इस पेपर की, तो इसलिए मेटा डाटा को हमें ठीक करने की जरूरत है यहाँ पे। तो हम इसके मेटा डाटा में जाते हैं, इस पेपर का पर्सपेक्टिव ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। पर्सपेक्टिव ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमारा जो पेपर है ये, अब देखिए इसके अंदर ऑथर का नाम नहीं है, इसी वजह से उसने उसके टाइटल से ही इसको साइट कर दिया। अगर इसके अंदर ऑथर्स होते, लाइक अगर मैं अपना नाम ही यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट नेम, और इसका फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, अगर आप खुद ऐड करना चाहते हैं किस तरह से देंगे, लास्ट नेम कॉमा देन फर्स्ट नेम या नेम्स, जितने भी नाम है वो आपके बाद में आएंगे। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ नवाज है, तो मैं यहाँ पे नवाज लिखूंगा कॉमा, और फिर मैं मोहम्मद आतिफ लिखूंगा, MUHAMMAD, मोहम्मद आतिफ। तो ये इस तरह से मैं, और एंटर ऑथर्स ऑन सेपरेट लाइंस, अगर मैं एक और ऑथर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ एक और एंटर प्रेस करूँ, मैं दूसरा ऑथर दूँ, फिर तीसरा ऑथर, जितने भी ऑथर्स हैं, हर ऑथर के बाद एंटर का बटन प्रेस करके मैं ऑथर जिसके अंदर ऐड करूंगा। और अगर मैं मोहम्मद अली एक और ऑथर ऐड करना चाहता हूँ, तो अली कॉमा MUHAMMAD मोहम्मद, मैंने यहाँ पे ऑथर्स ऐड कर लिए हैं। ठीक है, अब ऑथर्स ऐड करने के बाद मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे क्या जो मैंने साइट किया था वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको अपडेट का क्लिक कर देना है कि इसको अपडेट कर दे, ये साइटेशन को अपडेट कर दे, अपडेट फ्रॉम लाइब्रेरी। ये कमांड है साइटेशन सेटिंग के साथ, ये जो ऑप्शंस के तीन बटन, तीन डॉट्स नजर आ रहे हैं, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे
तो अपडेट फ्रॉम लाइब्रेरी करेंगे तो ये हमें ये अपडेट कर देगा। देखिए नवाज एंड अली, ये इसने साइटेशन यहाँ पे दे दी है, लेकिन स्टिल दिस इज नॉट एज पर दी एपीए। यहाँ पे एनडी आ रहा है क्योंकि डेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम अपने मेटा डाटा में जाके देखते हैं क्या इसकी कोई डेट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे कि किस साल में पब्लिश हुआ था। एड पब्लिकेशन डिटेल्स, अब देखिए यहाँ पे ईयर ही नहीं दिया हुआ। लेट्स से दिस पेपर वाज पब्लिश्ड इन 2022 और इस पे पेज नंबर्स थे 112 से लेकर 132 तक, सॉरी 132 तक थे। तो अब मैं इसको अगेन क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ जाके इसको अपडेट फ्रॉम दी रेफरेंस को मैं लाइब्रेरी से अगेन अपडेट कर देता हूँ। अभी अपडेट हुआ, देखिए यहाँ पे नवाज एंड अली कॉमा 2022 आ गया। और इसका अगर मैं यहाँ एक और साइटेशन भी ऐड करना चाहता हूँ, अगर 2 साइटेशन ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा कि एक और साइटेशन भी इसके साथ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। रेफरेंसेस में जाऊँ, लेट्स से इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस, ये भी जो है ये भी मैं ऐड कर इसके साथ। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि इसका भी मेटा डाटा अपडेटेड नहीं, ये हम करते हैं इस वाले पेपर को करते हैं साइड। अब रिमूव इट, इसको अनसेलेक्ट कर ले और इसके ऊपर वाले को भी हम अनसेलेक्ट करते हैं, वो चूंकि ऑलरेडी साइट हो चुका है। अब मैं इसको फर्दर साइट करना चाहता हूँ, तो इसको साइट करने के लिए इंसर्ट साइटेशन पे इसको सिलेक्ट किए बगैर ही मैं इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक कर दूँ। एक और साइटेशन हमारे पास हाँ, ये एग्जिस्टिंग साइटेशन में होगा तो एक और साइटेशन हम ऐड नहीं कर सकते। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम एंड नोट जब यूज करते हैं या कोई और रेफरेंस मैनेजमेंट जब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो जो एक साइटेशन लगी हुई है उसी साइटेशन के अंदर हम जब कर्सर रख के एक और साइटेशन ऐड करते हैं तो वहां पे उसको वो उसकी अरेंजमेंट भी करेक्ट कर देता है वो सॉफ्टवेयर, और उसको एक और साइटेशन भी उसके अंदर ऐड कर देता है, 1 या 2 या 3 ज्यादा साइटेशन भी ऐड कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या इशू है, यहाँ पर ये साइटेशन के अंदर ऐड नहीं करेगा, यहाँ पर उसके साइटेशन से बाहर आके हमें एक और साइटेशन ऐड करनी पड़ेगी। इसको ओके करें और अब देखें मैं कर्सर अपना उस साइटेशन से बाहर लेके आया हूँ और अब मैं यहाँ जाके इंसर्ट साइटेशन करूँगा तो देखिए एक साइटेशन और यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। लेकिन फॉर्मेट हमारा, चूंकि जब हम इकट्ठी साइटेशन देते हैं तो वो हमारा हमें एक ही ब्रैकेट के अंदर हमें सब साइटेशंस को इकट्ठा करना पड़ता है। तो इस मैंडले में एक ये जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो ये है कि इन दोनों साइटेशंस को मैं सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करके मर्ज साइटेशन का एक हमारे पास कमांड है उस पर क्लिक कर दूँ। साइटेशन सेटिंग में जाके मर्ज साइटेशंस, तो इसको करूंगा तो फिर वो उनको मर्ज भी कर देगा और उनकी अरेंजमेंट भी करेक्ट कर देगा। जैसे जब हम इकट्ठी साइटेशन देते होते हैं तो उसको वो जिस फॉर्मेट में यानी उसको क्रोनोलॉजिकली उसको अरेंज करता है। तो देखिए अब जब हमने मर्ज किया तो उसने उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दिया है, यानी बैलेंट की पहले आई है और नवाज वाली साइटेशन बाद में आई हुई है। तो इस तरह से हम साइटेशंस को मर्ज करते हैं, जबकि एक ही साइटेशन के अंदर ये दूसरी साइटेशन ऐड नहीं करेगा जो मेंडले है। ये एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेबर है जो मेंडले में हमें करनी पड़ती है, जो एंड नोड में हमें नहीं करनी पड़ती। दिस इज हाउ वी यूजुअली डू दी साइटेशंस। अच्छा, एक और अगर हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट खत्म हो गया और मैं यहाँ पे इस चैप्टर की या अपने थीसिस की यहाँ पे एंड पे बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं साइटेशन सेटिंग में जाऊँगा और सॉरी ये जो ऑप्शन है मेरे पास यहाँ जाऊँगा और मैं इंसर्ट बिब्लियोग्राफी कर दूंगा। जितने भी मैंने पेपर्स या रेफरेंसेस साइट किए होंगे वो सारे के सारे उनकी बिब्लियोग्राफी एंड पे इंसर्ट हो जाएगी और योर बिब्लियोग्राफी विल बी इंसर्टेड एट योर कर्सर लोकेशन, जहाँ पे आपने कर्सर रखा होगा वहां पे हो जाएगी। इसलिए मेक श्योर कि आपका जो कर्सर है वो आपके डॉक्यूमेंट के एंड पे हो। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये देखिए आपके कर्सर के एंड पे आपकी वो बिब्लियोग्राफी आ गई है। अब ये बिब्लियोग्राफी क्या आपकी जो रेफरेंसेस हैं, ये जो कंप्लीट रेफरेंस लिस्ट है, क्या ये करेक्ट है या नहीं है, क्या इसका फॉर्मेट ठीक है या नहीं है। स्टाइल तो इसने रेफरेंस स्टाइल तो हम इसने देखिए साइटेशन स्टाइल इसने एपीए ही सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन एपीए में भी देखें जो नेक्स्ट हमारा सेकंड पेपर है उसकी डिटेल्स कंप्लीट हैं। ईयर्स सॉरी ऑथर्स के नेम, लास्ट नेम कंप्लीट एंड जो स्टार्टिंग नेम है उसके एब्रीविएशंस हैं और उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। फिर जो सेंटेंस केस में हमारा टाइटल ऑफ द जर्नल है, देन उसमें टाइटल केस में और इटैलिक में जर्नल का नाम है और उसका वॉल्यूम भी इटैलिक है, जबकि उसका इशू नंबर जो है वो नॉन इटैलिक है, स्ट्रेट है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है, अभी भी पेज नंबर मिसिंग है। तो हमें उसके मेटा डाटा में जाके उसके पेज नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। जब हम उसके पेज नंबर वहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर उसका यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। यहाँ जाके हम इसके
अपडेट विद बैनेट में जाके इसके हम पेज नंबर नहीं दिए हुए, तो हम इसके पेज नंबर्स को ऐड करते हैं, एडिट करते हैं। यहाँ पे देखिए पेज नंबर अगर ये 58 से 79 तक है, तो इसको ओके करें, क्लोज कर दें और वर्ड में आइए। वर्ड में आके इसको अपडेट फ्रॉम लाइब्रेरी कर दें और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर पेज नंबर्स भी ऐड हो गए साथ, और आगे उसका DOI नंबर यहाँ पे लगा हुआ। तो दिस स्टाइल इज APA स्टाइल, जो कि हम यूजली सोशल साइंसेज में यूज करते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी जर्नल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ता है, डिफरेंट हमें एक उसका डिफरेंट साइटेशन स्टाइल की रिक्वायरमेंट है किसी जर्नल की तरफ से, या इवन हमारे स्कूल की तरफ से या हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, कि आप इसको नंबर्ड करें, वैंकूवर करें, शिकागो स्टाइल में करें या किसी और स्टाइल में करें, तो हम चेंज साइटेशन स्टाइल कर देंगे। इसमें हमारे डॉक्यूमेंट में चाहे 200 है या 400 या 500 साइटेशन लगी हुई हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वैंकूवर में, IEEE में, नेचर में या AMA में, किसी में भी हम किसी और साइटेशन स्टाइल में हम उसको कर सकते हैं। वैंकूवर में करें, अब ये देखें ये पैरेंथेसिस में नंबर्स होते हैं और एंड पे उसकी कंप्लीट साइटेशन होती हैं। तो मैं इस पर अपडेट साइटेशन स्टाइल करूंगा। आप ये देखेंगे 1 2, एक ही हमारी ब्रैकेट के अंदर 2 साइटेशन थी, 2 साइटेशन वहां पे आ गई हैं, और एंड पे जो उसकी बिब्लियोग्राफी है एज पर दैट पर्टिकुलर रेफरेंसिंग और साइटेशन स्टाइल की अपडेट हो चुकी है। हम एक ही क्लिक पे डिफरेंट जो साइटेशन स्टाइल्स हैं उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और एंड नोट यूज करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ये होता है कि चूंकि हमने क्रैक वर्जन यूज किए होते हैं, या अगर हम कोई भी और सॉफ्टवेयर यूज करें जिसका हम क्रैक वर्जन यूज करें, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो आपका जब आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप 100 साइटेशन या कोई 70-80 साइटेशन पे पहुंचते हैं या 50-50 प्लस पे पहुंचते हैं, तो वो हैंग होना शुरू हो जाता है और वो बहुत ही स्लो हो जाता है, और आपकी जो बिब्लियोग्राफी है या साइटेशन है वो बहुत स्लो अपडेट करता है। जबकि मेंडले के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। मेंडले में आपके 500 साइटेशन भी अगर आपकी डॉक्यूमेंट में ऐड हो गई हैं, तो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स टू अपडेट देम, एंड वी कैन चेंज द साइटेशन स्टाइल to any other citation style. We can switch from one citation style to the other. तो दिस इज हाउ वी साइट। मेंडले बहुत ही यूजर फ्रेंडली है कि आपका वो जो पूरी लाइब्रेरी है वो आपके मेंडले साइट की आपके साइट कमांड में आ गई है। सारे रेफरेंसेस यहाँ आए हुए हैं, साइटेशन सेटिंग्स आई हुई हैं, और स्टाइल्स और बिब्लियोग्राफी तमाम चीज़ें आपकी यहीं बटन्स पे आई हुई हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ए वेरी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। तो हम नेक्स्ट इसकी कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट इसका हमारा जो फंक्शन है वो है कोलैबोरेट। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि बहुत ही खूबसूरत फंक्शन है इसका, मेंडले का, जो कि सिर्फ साइटेशन और रेफरेंस मैनेजमेंट से बढ़ के है। जिस तरह हम रिसर्च गेट पे या रिसर्चर्स कम्युनिटी हमारी बनी होती है, जैसे हम रिसर्च गेट पे कोलैबोरेशंस करते हैं, तो हमें मेंडले में भी अगर इफ वी हैव अ टीम ऑफ 3-4 रिसर्चर्स, तो हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और मैंने अगर अपनी रेफरेंस मैनेजमेंट लाइब्रेरी एक बनाई है और हम एक पेपर पे मिलके काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम तीन तीन कुलीग्स हैं, या तीन हमारा एक पेयर ग्रुप है, और हम मिलके एक रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं और हमने अपनी लाइब्रेरी शेयर करनी है, तो ये कोलैबोरेट फंक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें इसमें हेल्प करता है। और वो कैसे होता है अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये देखें, मैंने एक रिसर्च ग्रुप बनाया, रिसर्च ग्रुप 1। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से फिल वक्त, ताकि हम इसको दोबारा कर लें। डिलीट ग्रुप, ये जो ग्रुप्स का फंक्शन है ये इस फंक्शन में जाके होगा। न्यू ग्रुप बनाया, आप न्यू ग्रुप पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं एक पेपर करना चाहता हूँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड एनवायरनमेंट। अगर मैं इस पे काम करना चाहूँ, मैं इस नाम से एक ग्रुप बना देता हूँ। तो इस नाम से मेरे पास एक ग्रुप आ गया। अब इस ग्रुप के अंदर मैं जब जाता हूँ तो देखें, मैं मैनेज ग्रुप पे क्लिक करूंगा, ग्रुप को रीनेम भी कर सकता हूँ, कोई कलेक्शन भी मैं इसके अंदर लिटरेचर की ऐड कर सकता हूँ न्यू कलेक्शन से। और मैनेज ग्रुप में जाके देखिए, मैं इसके अंदर किसी को ऐड भी कर सकता हूँ, इनवाइट भी कर सकता हूँ। तो इसकी लिमिट 25 मेंबर्स तक की है, तो 25 लोग आप एट द सेम टाइम एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो मैं अगर इनवाइट मेंबर पे जाऊँ, तो यहाँ पे देखिए मैं इनवाइट में यहाँ ईमेल एड्रेस देना चाहता हूँ। लेट से मैं अपने किसी पेयर ग्रुप का पेयर अपने किसी कुलीग का या किसी और दोस्त का यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। डॉक्टर तसव्वुर साहब को हम ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, TUSAWAR.IFTIKHER, डॉक्टर तसव्वुर इफ्तिखार @IUB.edu.pk। अगर इसके अलावा मैं किसी और को भी ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ तमाम ईमेल्स लिखता चला जाऊँगा
और सेंड इनवाइट करूंगा तो वो जो मैंने ईमेल दिए होंगे वहां पर एक इनविटेशन चला जाएगा कि वो मेरा मैंडली ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो वो उस पर क्लिक करेंगे और वो मेरे मैंडली ग्रुप में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंडली ग्रुप के अंदर हम जितने मेंबर्स होंगे वो यहाँ पे अपेयर हो रहे होंगे। यहाँ पे मेरे पास जितने भी रेफरेंसेस हैं, अगर मैं यहाँ से रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर अपने कुछ रेफरेंसेस भी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं रेफरेंस से क्लिक करके फॉर एग्जांपल मैं एनवायरमेंटल गवर्नेंस का पेपर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का पेपर, ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का पेपर, ये 3 पेपर्स मैं लेके जाना चाहता हूँ ऐड टू ग्रुप। जैसे पहले ऐड टू कलेक्शन किया था, अब ऐड टू ग्रुप की कमांड जो है ऐड टू ग्रुप में चला जाऊँ और ये मेरे पास यहाँ पे ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। मैंने जितने भी ग्रुप्स बनाए हुए हैं वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड एनवायरनमेंट वाले ग्रुप में इस पे ऐड पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे इसके अंदर वो तीनों पेपर्स के रेफरेंस चले गए। अब ये मेरे साथ इस ग्रुप में जितने भी मेरे पेयर्स या कुलीग्स हैं, ये तमाम लोगों की लाइब्रेरी में ये यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। हर बंदा उसको पढ़ सकता है। अगर फॉर एग्जांपल हम उसमें यहाँ पे हमारे पास 10 पेपर्स हैं या 20 पेपर्स हैं और हम असाइन करते हैं कि यार इसके अंदर मैंने अगर मेरे 3 कुलीग्स इसके अंदर हैं, हम ये डिसाइड करते हैं 5-5 पेपर हर बंदा पढ़ के देन वी विल डिस्कस हियर इन दी मेंडले। तो हम उसके अंदर डिस्कशन कर सकते हैं, हर बंदा अपने पढ़ के स्टिकी नोट्स इस पे अप्लाई कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है टेक्स्ट। और वो जो एक बंदा हाईलाइट करेगा वो पूरी पूरे आपके ग्रुप को वो अपेयर हो रहे होंगे। तो हम टीम्स में, ग्रुप्स में, कोलैबोरेटिव काम में यहाँ पर हम जो हमारा फंक्शन है मेंडले का, इस फंक्शन से हम फायदा उठा के हम अपने लिटरेचर को विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर स्पेस, कि हम अपने व्हाट्सएप की या कंप्यूटर्स की या लैपटॉप्स की स्पेस को कंज्यूम करें, हम यहीं पर मेंडले के अंदर ही हम ये काम कर सकते हैं। हम लिटरेचर शेयर कर सकते हैं, हम अपने काम यहाँ कर सकते हैं। एंड वंस वी कंप्लीटेड दैट पेपर, आपकी मर्जी, आपका ग्रुप ये यहाँ रहे या आप बेशक इस ग्रुप को डिलीट कर दें, अदरवाइज आप एक नया ग्रुप भी यहाँ बना सकते हैं जिस मर्जी नाम से और आप अपना ग्रुप बनाना चाहें। तो ये फीचर जो है ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। ये मुझे ये फीचर बहुत पसंद है क्योंकि इसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ों से हम आज़ाद हो जाते हैं और यहाँ पे हम वो काम कर सकते हैं और हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाने की बजाय हम एक ही प्लेटफॉर्म पे अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये देखें कोलैबोरेशन में जाके। अच्छा, ये जो इसकी वेबसाइट है, मेंडले वेबसाइट, हम वहाँ से भी इन इन ग्रुप से चीज़ें डायरेक्टली वो डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम किस तरह लाइब्रेरी में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कि अगर हम वेबसाइट से, जैसे गूगल स्कॉलर से अभी मैंने आपको बताया, तो अगर अगर मैं मेंडले वेब पे चला जाऊँ, देखिए मेंडले वेब मेरा ओपन है यहाँ पे। हम्म, ये मेरी मेंडले वेब ओपन है यहाँ पे। मेंडले वेब में जाऊँ और मैं सर्च पे अगर क्लिक करूँ, सॉरी, मैं यहाँ मेंडले पे मैं क्लिक करूँ और ये देखें, ये साइन इन हूँ और मैं इस लाइब्रेरी में जाना चाहता हूँ। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कोविड-19 है यहाँ पे, या बायो एनर्जी है, या ओबेसिटी है, किसी भी चीज़ पे मैं आर्टिकल डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं ये हमारा जैसे गूगल स्कॉलर है, तो उस तरह का फंक्शन भी ये हमें मेंडले प्रोवाइड करता है। यानी ये हमारा एक सर्च इंजन भी है। तो इससे रिलेटेड यहाँ सारे पेपर्स आ गए और ये बिल्कुल साइंस डायरेक्ट से सपोर्टेड है। आपको बता रहा है कि आप किस साल के कितने कितने पेपर्स आपके सामने आ रहे हैं। आपको पर्टिकुलर ईयर से सर्चिंग करना चाहें, आप डॉक्यूमेंट टाइप से सर्चिंग करना चाहें कि आप जर्नल का पेपर कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, बुक्स के चैप्टर्स कर रहे हैं, बुक्स पूरी डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली ऐड टू लाइब्रेरी करेंगे तो आपकी डायरेक्टली जो आपकी लाइब्रेरी है उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट चला जाएगा। हम करके देखते हैं इसको, ऐड टू लाइब्रेरी करें इसको। ये हमारी लाइब्रेरी में ऐड, देखें इसके साथ जो इसका साइन है, पहले प्लस का साइन था कि इसको ऐड करना है, जब ऐड हो गया तो देखें लाइब्रेरी का साइन, जिस तरह बुक्स एक शेल्फ में पड़ी होती है उस तरह से हमारा ये साइन चेंज हो गया। इसको भी हम लाइब्रेरी में ऐड कर देते हैं। अब हम अपनी लाइब्रेरी को जाके देखें क्या हमारी लाइब्रेरी में ऐड हो गई है। यहीं पर मेंडले वेब पर ही सर्च के साथ हमारी लाइब्रेरी अवेलेबल है। और इस लाइब्रेरी में जाके देखेंगे तो हमें हमारे रेफरेंस, ये जो रिसेंटली हमने किए हैं, ये कोविड-19 डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट द फियर ऑफ कोविड-19, तो ये वही 2 हमारे हैं जो हमने अभी इसमें ऐड किए थे। सॉरी, लाइब्रेरी में जाएं, रिसेंटली एडिट में क्लिक कर लें और रिसेंटली एडिट में देखें ये 2 आपके वही आ रहे हैं जो अभी हमने इसमें ऐड किए हैं। लेकिन इसके साथ फाइल्स अटैच नहीं है, तो हम इसकी फाइल भी अटैच कर सकते हैं। फाइल अटैच करने का प्रोसेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से हम जो हमारी मेंडले है, मेंडले वेब है, वो हमारा सर्च इंजन का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि
हम किस तरह से आर्टिकल्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी रीडिंग रिकमेंडेशंस भी हमें मिल सकती हैं। ये मेंडले की कुछ हेल्प गाइड्स हैं, ये मेंडले की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी। अगर आपको इसके अलावा अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए जब आप काम कर रहे हैं, चूंकि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया इसके लिए, तो ऑल ऑफ यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू मेंडले। हम अपने जो इस ग्रुप हमारा रहेगा, तो कोई इसको लीव करना चाहे तो इट्स अप टू यू। तो अगर आपको अपनी रेफरेंसिंग साइटेशन करते हुए कब आगे फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम आता है, then you can directly ask that question in the group and I'll answer that inshallah. So this was all about this Mendeley introductory workshop, and thank you very much. So अब this was my presentation. Let's go to the chat and see that if we have some questions, and I can answer all those questions now. अगर पब्लिकेशन में कोई आर्टिकल इंपोर्ट करना तो कैसे होगा? पब्लिकेशंस में से वो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम किस तरह से उसको ऐड कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स सलमान साहब, हम ये जो स्लाइड्स हैं ये शेयर करेंगे। ये स्लाइड्स आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाती हैं, आज ही हो जाएंगी इंशाल्लाह। श्योर सर। हाउ टू मिस केशवर पूछ रही है, हाउ टू असाइन कलेक्शन टैग्स टू अ रेफरेंस। हम कलेक्शन टैग टू अ रेफरेंस, हाउ टू असाइन कलेक्शन टैग्स टू अ रेफरेंस। सॉरी, मैं इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। आप इसको फर्दर थोड़ा एलाबोरेट कर लें, या अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप अनम्यूट करें अपने आप को और इस क्वेश्चन को दोबारा से पूछ सकती हैं, तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट न्यू कलेक्शन, हाँ जी, ये देखिए यहाँ कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम नेम एंटर करेंगे तो तभी हो जाएगा। थैंक यू, दैट वाज इंफॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। मेंडले शो नहीं होता, एनी रीज़न? मेंडले शो नहीं होता, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मिस आसिया रहमान, इफ़ यू हैव दिस प्रॉब्लम देन लेट अस नो, फिर देख लेंगे क्या इशू है, क्यों शो नहीं हो रहा। मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप एंड नोट और मेंडले जब दोनों चीज़ें पैरेलल यूज़ करेंगे तो इनके प्लगइन्स समटाइम्स प्रॉब्लम करेंगे। जब आप साइटेशंस कर रहे होंगे तो आपके ये प्लगइन्स प्रॉब्लम करेंगे, तो आप एक को डिसेबल कर दें जो जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप मेंडले कर रहे हैं तो फिर आप एंड नोट के उसको डिसेबल कर दीजिएगा, और अगर आप एंड नोट कर रहे हैं तो फिर मेंडले को डिसेबल, इसका प्लगइन डिसेबल कर दीजिएगा। वर्ड में मेंडले की ऑप्शन शो नहीं हो रही, जो मेंडले साइट का बटन है मुज़य्यन तारिक, वर्ड में मेंडले की ऑप्शन शो होती है। ये जिस तरह से मैंने वर्ड ओपन किया हो तो वहाँ पे मेंडले साइट का, ये देखें साइट विद मेंडले की एक ऑप्शन आ रही है। तो अगर ये नहीं आती तो ये मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, मेरी शायद ये प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में ही है, तो ये मैं स्लाइड भी शेयर कर देता हूँ किस तरह से हम मेंडले साइट हम किस तरह से करेंगे। ये देखें, ये एक्सटेंशंस किस तरह से होंगी। ये एक्सटेंशन स्टोर से जाके वेब इंपोर्टर हो जाएगा, और ये टूल्स में से जाके आप मेंडले डेस्कटॉप पे जाएं, और डेस्कटॉप में जाके ये देखें टूल्स पे क्लिक करें, और ये मेंडले इंस्टॉल मेंडले साइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अगर स्टिल प्रॉब्लम आपको आता है, इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, तो अगर स्टिल इसमें किसी को कोई मसला आता है तो आप इसको करते हुए आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपनी क्यूरी भेज सकते हैं, हम उसमें आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू जी, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड बेस्ट प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। Over to the organizers, please. Let me stop sharing my screen. Thank you, Dr. Muhammad Atif Nawaz, for that informative presentation. We have now reached the end of our workshop. Thank you all for your active participation and engagement throughout the session. We hope you have found this workshop on reference management through Mendeley valuable, and that you feel more confident using the tool for your research needs.
Before we conclude, I would like to thank our trainer, Dr. Muhammad Atif Nawaz, for the excellent presentation and guidance. We also appreciate your patience and enthusiasm. Your feedback is very important for us to improve our future workshops. Please take a moment to fill the feedback form. We will share the link in the WhatsApp group and we'll also share it through email. We will also be sending a follow-up email with the presentation slides, additional resources, and recording of today's session. If you have any further questions or need additional support, feel free to reach out to us. Thank you once again for joining us today. Have a great day. Thank you, sir.